Very good afternoon. I welcome all of you on today's webinar on intricacies in place of supply of goods and services. And on this subject, we have a learned and star speaker, CA Bimal Jain ji. And everybody know Bimal Jain ji is a very religious and a #1 position in direct tax in India and abroad also. And on my special invitation, CA Vijay Gupta ji, our council member, regional council member, is with us. He is also a CP committee chairman, and earlier he was the treasurer of Northern India Regional Council, and he is a graduate from DU University, and also doing a lot for members, and by arranging the webinars on various subjects for the benefit of the member. I request and first I welcome him, sir. Welcome, sir. Gupta ji. Thank you, sir. And request kindly address and introduce our Bimal ji. Over to you, sir. Gupta ji. Thank you, Rajesh ji, for giving me this opportunity and introduce wonderfully. And I welcome CA Sunil Dhanija ji and CA Rajesh Kohli ji, the convener of this study circle, and our special guest speaker, CA Bimal Jain ji. Everybody knows him even before the introduction of GST. Bimal Jain ji is a chartered accountant since 1994 and also the fellow member of the Company Secretary Institute of India and a law graduate. And is dealing in direct tax since last 21 years. In GST and in the previous regime, service tax, VAT, GST, central excise, custom, foreign trade policies, export-oriented unit, and he is presently the executive consultant of A to Z company, and he is also the chairman of Indirect Tax Committee of PhD Chamber of Commerce, and he has authored a book on GST. He has taken also various awards and recognition. He was the keynote speaker at Guinness World Record made by ICSI in largest taxation lesson on GST attended by 4,500 plus participants. And a business leader award from Amity School, Noida, best speaker award from NIRC of ICI as well as ICMAI, and Young Achiever Award at Igniting Mind 2015, and best participant award in MSOP by ICSI. And he has also taken the professional membership of various institutes. So his profile is very lengthy. I have just read the only few points. Just as a question, otherwise, we all know Bimal ji since beginning. I qualified in CA 2003. So now I request CA Rajesh Agarwal ji to please proceed further. Thank you, Gupta ji. Without taking too much time of the audience, and straight away I request our Guruji in indirect test, Bimal Jain ji. Sir, over to you, sir. I also welcome Mudit Jain ji, sir. At the outset, let me thanks Sri Rajesh ji. He's very kind enough, always with the kind word, polite word, with so much of high word about me. I'm thankful to him and to all the managing committee members of this esteemed study circle. And I also thank CA Vijay Kumar ji, who is a guest today, and he has introduced me before all the participants. Thanking all the participants who are taking out their time and joining this webinar on an important topic of place of supply for goods and services. आवाज दिक्कत कर रही है, I think. Am I audible to all? Right now, sir. Yes, okay. Yes, audible, sir. Okay. Now, मैं आज अपना जो डेलिब्रेशन रखूंगा आपके सामने, मैं इंश्योर करूंगा कि आपको ये डेलिब्रेशन अच्छा लगे, and you must really get something good which you're looking from place of supply, either for goods or services. We will discuss import and export as well. तो मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहूंगा, आप सभी पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहूंगा. I will use हिंदी इंग्लिश मिक्स, जिससे आपको भी फायदा हो और आप भी मेरे साथ इंटरैक्ट कर पाए.
ऑब्जेक्टिव ये होता है कि 2 घंटे जब हम साथ बैठे हैं तो कुछ अच्छा करें। कुछ अच्छा करने का मतलब ये होता है कि मैं जो यहाँ से दूं वो आप ले पाए, और जो आप वहां से दें मैं दोनों हाथों से ले पाऊं, जिससे हम दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान करें, गिव एंड टेक करें। टॉपिक प्लेस ऑफ सप्लाई है। मैंने 6-7 केस स्टडीज अपने माइंड में फिट कर लिए हैं कि आज 6-7 केस स्टडी, प्रैक्टिकल केस स्टडीज हम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई जो जीएसटी में है ये है क्या, और इसमें कंफ्यूजन कहां कहां पे है, और आप इसे अपने प्रैक्टिस में कैसे यूज कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कई पार्टिसिपेंट्स ऐसे हों जो जीएसटी की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करते, लेकिन फिर भी आपने आज रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम जीएसटी की प्रैक्टिस नहीं करते और डेलिब्रेशन स्टार्ट होता है तो 10-15 मिनट में हमारी आशाएं खत्म हो जाती हैं। बोले नहीं यार मेरी समझ में नहीं आएगा, मेरे ऑफिस में कोमल है, कोमल देख लेगी। सब हम कोमल पे छोड़ देते हैं, वो बेचारी कोमल ही सुन रही होती है और कोमल ही रिटर्न भर रही होती है। लेकिन अब आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊं, जीएसटी ऑडिट, जीएसटीआर 9 और 9C हमारी सिग्नेचर जा रही होती है। अब आपने देखा होगा कितनी इंटेंस वे में चीजें अब टेबल पे आ रही हैं। इवन रिसेंटली मैं आपको बताऊं, ऐसे कई केसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट को इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया, उनको जेल हो गई फॉर सिंपल रीजन दैट उन्हें सिंपल रिटर्न भरा था। उनका आर्गुमेंट ये था मैंने तो सिर्फ रिटर्न भरा है, बट बाद में मालूम पड़ा कि सप्लायर ने बोगस इनवॉइसेस रेज की है। अब आप समझिए हम जो एक सिग्नेचर जिसको हम सर्टिफिकेशन वर्क कह रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ती जा रही है। अगर मैं जीएसटी नहीं करता, मुझे जीएसटी में पांव ही नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा बिना जीएसटी के? नहीं कर पाऊंगा। देखिए 2 टैक्सेस बहुत मेजर हैं, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी। मैं आपसे नहीं कहता कि आप लोकल जो प्रोविजन है म्युनिसिपल टैक्स, लोकल प्रोफेशनल टैक्स या लोकल में एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टेट पर्सपेक्टिव आप मत देखिए, पर अगर आपको अब प्रैक्टिस या एम्प्लॉयमेंट में सरवाइव करना है तो बिना इनकम टैक्स और बिना जीएसटी के वे फॉरवर्ड नहीं है। तो कई बार हम अपना समय निकालते हैं, सुनना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो पैशन एक होता है ना, एक टाइम पेशेंट, कि हम थोड़ा टाइम दें, थोड़ा समझने की कोशिश तो करें। और कई बार स्पीकर की तरफ से भी होता है कि वो आता है और सीधे उसने टेक्निकल प्रोविजन पढ़ाने चालू कर देता है, तो कई बार आपको समझ में भी नहीं आता। आपको लगता है अरे यार पहले मुझे बता दो दे मुझे पढ़ना क्या है, तो सीधे प्रोविजन पढ़ाने लगेगा, मेरी तो समझ में आएगा ही नहीं। और कई बार वो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर देते हैं सारी चीजें, लिया सेक्शन बोलना है स्टार्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई मुझसे बोल दिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन सो एंड सो में ये लिखा है बोल, तब तक आपका जो होप है पढ़ने का और सीखने का और समझने का, आप खो बैठते हैं। आप बोलते नहीं यार मैं नहीं समझ पाऊंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कोई मेरे हिसाब से समझाए तो मेरी समझ में आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा आज मैं आपको आपकी तरह, आपकी समझ के हिसाब से आपको समझा सकूं, लेकिन इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए होगा ना। क्या साथ चाहिए मुझे? आपका चैट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है। चैट बॉक्स में जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आप उसका आंसर दीजिए। आपके कोई क्वेश्चन हो, जब मैं कोई भी टॉपिक डिलीवर कर रहा हूं और आपके कोई क्वेश्चन हो, बेधड़क बिंदास पूछिए, जिससे कम से कम ये तो होगा कि आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब जब मैंने ये कह दिया तो अब हमें स्टार्ट करना है। टॉपिक जो है वो आपको मालूम है। अब मैं आप लोगों से एक चीज और चाहूंगा, आज जब मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होगी तो बहुत से लोग चाहते हैं हम बिमल जी से इंटरेक्ट भी करें, बात भी करें, बिमल जी का नंबर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगा, लेकिन वो मोबाइल नंबर किस लिए होगा मालूम है? आज आप बैठ के एक पेपर और पेन लीजिए और नोट बनाइएगा जो आपको समझ में आए। थोड़ा हम जब स्टडी सर्कल में कोई भी एक टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ नोटिंग कीजिए, जितना आप नोट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टूडेंट बन जाइए, आप सब लर्नेड हैं, लेकिन जब हम कहीं कुछ सीखने के लिए बैठे ना तो बाकी स्टूडेंट बन जाना चाहिए, तभी हम सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। तो आप एक पेपर और पेन लीजिए, वो सारी चीज नोट कीजिएगा जो मैंने आपसे कही,
और करने के बाद लास्ट में मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करूंगा। आप सब मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं देखूं तो सही आज के पार्टिसिपेंट्स में कौन सा ऐसा पार्टिसिपेंट था जिसने वाकई अच्छी तरीके से चीजों को समझा, नोट किया। और इससे फायदा क्या होगा मालूम है? आपके माइंड में जो डाउट है और जो क्लैरिटी इमर्ज होगी समझने के बाद, क्योंकि जब हम अपने हाथ से कोई चीज बनाते हैं ना और लिखते हैं, वो यहाँ छप जाती है। ऐसा ही हमने अपनी पढ़ाई के टाइम पे देखा है। जब हम सीए के एग्जाम में स्टडी करते थे, कई बार कई चीजें हमने एकदम इंटेंस होके पढ़ी, वो आज तक रजिस्टर्ड है, अभी तक माइंड से बाहर नहीं निकली है। तो आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए और हम दोनों मिलके एक साथ एक ही तरह से सबका साथ सबका विकास तो हम सब मिलके करेंगे। आप भी तैयार रहिए और मैं भी तैयार हूं। तो दीपक सोगानी जी ने अपना मेंबरशिप नंबर डाला हुआ है। इसमें क्या मेंबरशिप नंबर डलवाते हैं क्या आप नहीं राजेश सर, जी? कोई जरूरत नहीं है। आई हैव रिक्वेस्टेड सो मेनी टाइम्स, बट एवरी मेंबर विश कि ही राइट हिज मेंबरशिप नंबर एंड नेम। देयर इज नो नीड। नो नीड। तो मैं फिर आपसे अब रिक्वेस्ट कर दूं सभी पार्टिसिपेंट से कि कोई मेंबरशिप नंबर मत डालिए। आप अगर कंटिन्यूअसली 1-1.5 घंटे इस प्रोग्राम में हैं तो आपके नाम से अटेंडेंस लग जाएगी और आपको सीपीआर मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। पर सीपीआर से ज्यादा आपको क्या करना है आज को सीपीआर से ज्यादा आपको ये करना है कि मुझे आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझना है, मेरी माइंड में क्लैरिटी हो जानी चाहिए जिससे कल कोई डाउट ना हो। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहले मैं एक सर्विस का केस लेता हूं, फिर मैं गुड्स पे आऊंगा और फिर मैं आपको सर्विस पे लेके जाऊंगा। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पहले मैं समझा दूं प्लेस ऑफ सप्लाई का रिलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी में इसलिए डाला गया कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। जब डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है तो हर स्टेट गवर्नमेंट ये चाहेगी कि कोई भी सप्लाई जो जीएसटी में हो उसके ऊपर जो एसजीएसटी कंपोनेंट लगता है वो उस स्टेट को मिले ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। एक एग्जाम्पल लूं मैं आपके सामने जिससे आपको समझ में आए। अगर मैं दिल्ली से हरियाणा माल सप्लाई कर रहा हूं, दिल्ली से हरियाणा, रजिस्ट्रेशन जब मुझे लेना होता है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपको उस स्टेट में लेना पड़ता है जिस स्टेट से आप सप्लाई कर रहे हैं, द स्टेट वेयर फ्रॉम यू आर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज। सो रजिस्ट्रेशन तो आपको दिल्ली में लेना होगा, पर जीएसटी किसको मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। आपने रजिस्ट्रेशन दिल्ली में लिया, पर जीएसटी एसजीएसटी कंपोनेंट किसको मिलेगा? क्योंकि मैंने दिल्ली से माल हरियाणा सप्लाई किया तो हरियाणा को मिलेगा। मैं क्या चार्ज करूंगा? आईजीएसटी चार्ज करूंगा। आईजीएसटी में दोनों कंपोनेंट हैं, सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है, पर एसजीएसटी हरियाणा को मिलेगा। तो अभी देखिए, अभी जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, 41st जीएसटी काउंसिल मीटिंग, और हमारे ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर ने कोरोना जो चाइना से चल के पूरे विश्व में फैला, उन्होंने कह दिया ये एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान ने फैलाया है, सब कुछ है भगवान की वजह से हुआ है, एक्ट ऑफ गॉड है। वो ओ माय गॉड फिल्म देखी नहीं थी, ये एक्ट ऑफ गॉड है। तो उनने इस बात को क्यों कहा मालूम है? जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को एक कमिटमेंट दिया था। क्या कमिटमेंट दिया था? कि जीएसटी इंट्रोड्यूस करने की वजह से अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई नुकसान होगा, जी रेवेन्यू लॉस होगा, इसको समझने के लिए सिंपल वर्ड में, अगर दिल्ली का कलेक्शन 30,000 करोड़ रुपए है पर ईयर का, और जीएसटी लाने की वजह से अगर एक कलेक्शन 30,000 करोड़ रुपए से नीचे, और उनने इसका एक ग्रोथ प्लान किया था कि ईयर ऑन ईयर हम 14% का ग्रोथ मानेंगे, यानी
सेंटर और स्टेट ने ये तय कर लिया, और जो एग्जाम्पल मैंने लिया, मान लीजिए 30,000 करोड़ का, वो ईयर ऑन ईयर 14% की रेट से बढ़ेगा, और उस बेसिस पे उस स्टेट का उतना रेवेन्यू आना चाहिए। अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ तो ये स्टेट सेंटर से डिमांड करेंगी, और सेंटर ने कहा था तुम डिमांड मत करना, मैं खुद एज ए फादर आपको कॉम्पेंसेट करूंगा। तो ये जब तय हो गया, 5 साल की समय सीमा ये डाल दी गई कि 5 साल तक, तो इन्हें कॉम्पेंसेशन सेस लगाया था। वो एक फंड इसीलिए बनाया गया था कि इसमें जो कॉम्पेंसेशन सेस कलेक्ट होगा, इसी सेस से सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट को कॉम्पेंसेट करेगी। तो पहले जब जीएसटी आया था तो तब प्रॉब्लम इतनी ही थी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, उनको बड़ा डर था कि यार मैं दिल्ली में माल बनाऊंगा और मैं हरियाणा को भेज दूंगा तो मुझे जीएसटी नहीं मिलेगा। आपको मैं याद दिला रहा हूं, ये कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए। जब जीएसटी का कॉन्टेक्स्ट आप समझेंगे तो आपको समझ में सारी बातें आने लगेगी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनको बड़ा डर था कि जीएसटी आने से इनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्यों होने वाला है? कि इनकी फैक्ट्री महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका में होगी, और अगर माल महाराष्ट्र से बाहर बिकेगा तो महाराष्ट्र को तो कोई जीएसटी मिला ही नहीं। तो इनको बहुत डर था। तो इसी डर की वजह से ये कॉम्पेंसेशन सेस मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ने फोर्सिबली एग्री करवाया था। तो पहले 2 साल 2017, 18 एंड 18, 19, अगर ये पहले 2 साल अगर आप देखें ना, तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का जो कलेक्शन था और जो डिसबर्स हुआ वो तो ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम आई 1920 से। इनका कलेक्शन 1920 में 95,000 करोड़ था। 1920 की बात कर रहा हूं, जब कोरोना ने मार्च में एंट्री की थी। 95,000 करोड़ था, और 1,65,000 करोड़ रुपए कॉम्पेंसेशन सेस के अकाउंट पे कॉम्पेंसेट करने पड़े थे। यानी पहले साल ही अराउंड 90,000 करोड़ का शॉर्टफॉल 1920 में। अब वहां से सारा डिबेट स्टार्ट। और कॉम्पेंसेशन सेस किन स्टेट को दिए गए मालूम है? अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, ऐसे भी स्टेट थे जो सिर्फ कंज्यूमिंग स्टेट थे, जहां उनके पास कलेक्शन बढ़ना चाहिए था, उनको भी कॉम्पेंसेट करना पड़ा। अब सेंट्रल के लिए प्रॉब्लम आ गई, जिसके लिए 41st जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड हुई, और उसमें यह बताया गया 2,35,000 करोड़ का शॉर्टफॉल होगा। अब सेंटर प्ले कर रही है 2 ग्राउंड पे। भैया, कोविड-19 एक्ट ऑफ गॉड है। जो 14% का ग्रोथ मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक ना टैक्स इंडिया ऑनलाइन पे एक डिबेट स्टार्ट हुई थी। मैंने 2 दिन पहले उस पैनल में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें पास चेयरपर्सन सीबीआईसी नजीब साहब भी आए थे, और कई लर्नेड मिस्टर वी के गर्ग भी थे। उसमें मैंने पार्टिसिपेट एज ए पैनलिस्ट किया था। तो उस दौरान हमने 2 बातें डिस्कस बहुत ब्रॉडली की थी। और ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों बता रहा हूं, इसी बताने के लिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस है क्या। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जिसमें हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि मेरा गुड्स एंड सर्विसेज कहां पे कंज्यूम हुए। एक बायलॉज बनाया गया, कहां कंज्यूम हुए। तो जब डिस्कशन हुआ, जो कॉम्पेंसेशन सेस पे मैं कह रहा था, तो हमने 2 बातें डिस्कस की। एक बात हमने डिस्कस ये की, क्या 14% जो हमने प्रॉमिस, सेंटर ने प्रॉमिस किया था, उसको हम चेंज कर सकते हैं। पहला पार्ट ये था कि क्या हम 14% की ग्रोथ जो प्रॉमिस की गई थी, उसे चेंज कर सकते हैं। सेंटर ने स्टेट से कहा है कि प्लीज, कोरोना इज एन एक्ट ऑफ गॉड। हमने तो जो तय किया था वो तब तय किया था जब कोई एक्ट ऑफ गॉड बीच में नहीं आएगा। अब तो ये कोरोना आ गया है भैया, ये एक्ट ऑफ गॉड है, 14% हम नहीं दे पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जो शॉर्टफॉल है 2,35,000 करोड़ का, अब इसकी बोरिंग, क्योंकि स्टेट तो बोल रही आपको देना पड़ेगा,
सेंटर अगर विड्रॉ कर लेगी तो जीएसटी तो गया, फिर तो हम पुराने वैट रिजीम में पहुंच जाएंगे, सारे स्टेट अपने हिसाब से फिर चालू। तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, सेंटर भी नहीं चाहेगा। अब बोरोइंग कौन करे, बोरोइंग सेंटर करे या स्टेट करे, तो ये डिस्कशन अभी चल रहा है। ओवरऑल लगता मुझे ये है कि सेंटर को बोरोइंग करनी पड़ेगी, स्टेट बोरोइंग नहीं करेंगे। जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट है उनने कैटेगरिकली मना कर दिया है कि हम बोरोइंग नहीं करेंगे। और बोरोइंग करने के बाद जब डेट पे करना पड़ेगा, डेट, तो इनने ये प्लान किया है कि जो कॉम्पेंसेशन सेस 5 साल में खत्म होना था उसको बढ़ा दिया जाएगा टाइम पीरियड, और वहां जो कलेक्शन होगा उससे डेट का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। दिस इज व्हाट द वे फॉरवर्ड। पर मैंने आपको ये बताया क्यों, मैंने ये इंपॉर्टेंस बताने के लिए बताया कि देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी में इसलिए डाला गया कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि गुड्स एंड सर्विसेज मेरे कहां पे कंज्यूम हुए। मैंने गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग की, पर अगर मैंने त्रिपुरा को माल बेचा, त्रिपुरा को एसजीएसटी मिलेगा, आईजीएसटी लगेगा, पर उसका एसजीएसटी कंपोनेंट त्रिपुरा को मिलेगा, गुजरात को ठेंगा। उसी के लिए कॉम्पेंसेशन सेस था। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड जो मैंने आपको दिया। अब जब प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए एक रूल बना दिए गए, तो आपके लिए और मेरे लिए अब कोई चॉइस नहीं है, जो रूल है वही फॉलो करने पड़ेंगे। आपके लिए और मेरे लिए कोई चॉइस नहीं है, आपको वही फॉलो करने पड़ेंगे। आपको या तो समझना पड़ेगा या आपको अपने आप को इन्वॉल्व करके इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूं, केस स्टडी नंबर 1। मान लीजिए मेरी दिल्ली में फैक्ट्री है और मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं। अब आपसे मैं चैट बॉक्स में पूछूंगा और आप सब मुझे आंसर भी करेंगे। मेरी दिल्ली में फैक्ट्री है और मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं। महाराष्ट्र मुंबई से एक कस्टमर ने मुझे ऑर्डर किया और उसने कहा बिमल जी मुझे 100 पीसेस आपके फिनिश गुड्स, जो उनका फिनिश गुड्स, मान लीजिए कलर टेलीविजन की बात हुई, 100 पीसेस कलर टेलीविजन आप भेज दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से हो सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एफओआर डेस्टिनेशन, जिसमें सप्लायर, मैन्युफैक्चरर जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उसने कहा यह माल मैं आपको मुंबई में डिलीवर करूंगा। एम आई राइट? पहला सिनारियो। और दूसरा सिनारियो, महाराष्ट्र मुंबई से कस्टमर दिल्ली आता है और मेरी फैक्ट्री से 100 कलर टेलीविजन ले लेता है। तो मैंने अपने फैक्ट्री गेट पे उसको 100 कलर टेलीविजन दे दिए। अब वो जहां लेके जाना चाहे जाए, मैंने तो उससे डिलीवर कर दिया अपने फैक्ट्री गेट पे। तो दो सिनारियो मैंने आपको बना दिए। अब प्रोविजन भी बता दूं, फिर मैं आपके एग्जाम लूंगा। प्रोविजन क्या कहता है, किसको हम इंट्रा कहेंगे, किसको हम इंटर कहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का कस्टमर है। पर दो सिनारियो बनाए हैं तो हमें समझना पड़ेगा। तो पहले आप समझ लिया आपके लिए रूल क्या है। रूल ये है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। आई होप आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है तो ट्रांजैक्शन को हम इंट्रा स्टेट कहते हैं, जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट में हो तो ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट कहा जाता है और उस पे आईजीएसटी लगता है। अब मैंने थंब रूल आपको समझा दिया। अब जिन जिन को प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन मालूम है वो अपने माइंड में रिकॉल कर लें। एक प्रोविजन है 10(1)(a), 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज A ऑफ आईजीएसटी एक्ट। देखिए लोकेशन ऑफ सप्लायर
दोनों सिनारियो में सेम रहेगा दिल्ली, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। दोनों सिनारियो में FOR डेस्टिनेशन एंड एक्स वर्क्स, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई जब मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो जब मैं माल कस्टमर के घर पे जाके मुंबई में डिलीवर करता हूं, तो मेरी डिलीवरी खत्म हुई मुंबई में, राइट? तो ट्रांजैक्शन क्या होगा, चैट बॉक्स में डालिए, ट्रांजैक्शन क्या होगा, इंट्रा होगा या इंटर होगा? चैट बॉक्स में मुझे आपसे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। आप सब मुझे लिखेंगे एकदम बकायदा, बिल्कुल इस तरीके से एकदम आंसर बराबर आना चाहिए। विद्या पुरवाल, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, place of supply because goods delivered in Mumbai. So that is interstate supply, interstate supply. So कोई confusion नहीं होना चाहिए, IGST लगेगा, ठीक है नेहा? अब थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको। तो जो FOR डेस्टिनेशन था उस पे मैंने IGST लगाया, यानी SGST कंपोनेंट ऑफ IGST महाराष्ट्र को मिल गया ना, मिल गया ना? GST इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। आपको ये फंडामेंटल समझ में आ गया? देखिए, इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई इस तरीके से बनाया गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं इसको। जो एक्सवर्क्स था, मुंबई से चल के कस्टमर मेरी फैक्ट्री में आया दिल्ली में, और दिल्ली फैक्ट्री में मैंने 100 कलर टेलीविजन लोड करके उसको फैक्ट्री गेट पे दे दिए। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर बिमल जैन दिल्ली रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो आप लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके माइंड में अब बातें मूव हो रही होंगी, अरे बिमल ने तो माल दिल्ली में ही दे दिया, ट्रांजैक्शन तो इंट्रा स्टेट होनी चाहिए, और कुछ लोग इसे इंटर मानने की कोशिश करेंगे। तो मैं चैट बॉक्स में पहले समझ लूं आप लोगों से, कितने लोग मानते हैं ये इंट्रा स्टेट है और कितने लोग मानते हैं ये इंटर स्टेट है? बताइए चैट बॉक्स में, मैं देखूं तो सही। ओके ओके ओके, चलिए चलिए, ओके ओके। दीपक जी हैं, उनने से इंट्रा स्टेट कह दिया। अब सपना जैन है, वो इंटर कहती हैं। तो कई तरह के लोग हैं, कई तरह की, दोनों तरह की बातें आ गई। मिक्स हो गया, मिक्स हो गया ना? तो मिक्स हो गया तो अब आपको मेरे पर छोड़ना पड़ेगा, फाइनल डिसीजन मेरे ऊपर रहेगा। तो आप लोग आज एक थंब रूल याद करेंगे, थंब रूल। और थंब रूल कभी भूलना नहीं है आपको। पहले आप नोट कीजिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ IGST एक्ट, नोट कर लीजिए, जिससे कल आप जब अपना नोट खुद देखेंगे तो आपको हेल्प करेगा। कल आपकी हेल्प खुद करेगा, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मुझसे पूछना भी नहीं है, और किसी GST कंसल्टेंट से नहीं पूछना है, आप GST कंसल्टेंट होंगे। ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट होगी, पहले मैंने आपको आंसर दे दिया, ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट होगी। अब क्यों होगी, इसको जस्टिफाई करना जरूरी है, जस्टिफाई करते हैं, कोई इशू नहीं। जिनने इंटरस्टेट कहा उनके लिए तालियां, और जिनने इंट्रास्टेट कहा उनके लिए डबल तालियां, क्योंकि वो सीख जाएंगे आज। तो अब सुनिए क्यों इंटरस्टेट होगा, सुनिए। 10(1)(a) बोलता है, और ठीक से सुनना है, ध्यान से सुनना है, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट तो है, FOR के केस में सप्लायर ने ट्रांसपोर्टर एंगेज किया होगा और माल दिल्ली से मुंबई भेजा होगा। और सेकंड केस में भी, एक्सवर्क्स केस में भी, ये माल कहीं तो जाएगा। मैंने फैक्ट्री गेट पे दे दिया है, बट सेकंड केस में होगा क्या, जो मेरा बायर है महाराष्ट्र वाला, वो ट्रांसपोर्टर एंगेज करेगा और माल को दिल्ली से
मुंबई लेके जाएगा। तो दोनों में बस फर्क इतना था, पहले केस में सप्लायर ट्रांसपोर्टर को एंगेज कर रहा था, सेकंड केस में कस्टमर एंगेज कर रहा है। पर माल सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, और प्रोविजन बोल रहा हूं मैं आपसे, आइदर बाय सप्लायर फॉर डेस्टिनेशन और बाय रिसिपिएंट, इस वक्त जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, और बाय एनी अदर पर्सन, then place of supply would be where delivery terminates। तो इस वक्त केस में भी मेरी डिलीवरी मुंबई टर्मिनेट ही करेगी, क्योंकि कस्टमर ने ट्रांसपोर्टर एंगेज किया और वो माल उसने दिल्ली से मुंबई लेके गया। सो डिलीवरी टर्मिनेट्स इन मुंबई, hence place of supply is Mumbai interstate। पहला आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट, 50,000 रुपए से ऊपर ईबे बिल भी जनरेट करना है ना। अगर गलती से आपने से इंट्रा कह दिया, इंट्रा, तो दिल्ली टू मुंबई ईबे बिल कैसे जनरेट करेंगे आप? उल्टा होगा क्या? आपने इसको इंट्रा मान लिया और ईबे बिल दिल्ली टू मुंबई होगा? नहीं हो सकता ना, इंटर ही होगा ना, आईजीएसटी होगा ना। सेकंड आर्गुमेंट दिया मैंने आपको। थर्ड आर्गुमेंट, अगर मैं, मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? एम आई क्लियर पंकज जी? क्लियर सर, वेरी क्लियर सर। तो ये पंकज जी आप अपना देखिए, अपना इंटरनेट कनेक्शन देखिए। ये नाउ फाइन, पंकज जी ने एकदम बोल दिया, अब ठीक आ रहा है। अब कॉम्पेंसेशन सेस मिल गया पंकज जी को। चलिए तीसरा केस बताऊं आपको। देखिए, जब मैं सप्लायर हूं तो मुझे टैक्स इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, राइट, और मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई डालना पड़ेगा। ये मेरे लिए प्रोविजन है। टैक्स इनवॉइस के लिए जो रूल है उसमें लिखा हुआ है, अगर मैंने से इंट्रा मान लिया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और आपका जीएसटी नंबर, कस्टमर का जीएसटी नंबर महाराष्ट्र का है, एम आई राइट? तो मैं अगर इंट्रा में सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दूं तो उसके महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन 2A में क्रेडिट आएगा? नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। यानी इम्प्लाइडली 99.99% आपको ये मान के चलना है कि अगर महाराष्ट्र का कस्टमर है, महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर दे रहा है, तो वो माल महाराष्ट्र लेके जाएगा, अनलेस अदरवाइज ही कन्वे टू यू। सर मैं महाराष्ट्र लेके नहीं जा रहा, मैं तो मयूर विहार से चांदनी चौक लेके जा रहा हूं, तो आपको उसी टैक्स इनवॉइस पे फिर डालना पड़ेगा एड्रेस फॉर लोकल डिलीवरी चांदनी चौक, तभी आप उसे इंट्रा स्टेट मानेंगे। अदरवाइज 99.99% मेरा इम्प्लाइड एजम्पशन उसके जीएसटी नंबर पे जाएगा जो महाराष्ट्र का नंबर होगा। एम आई क्लियर? अभी पंकज प्रकाश धमेचा जी थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आप लोग को बड़ी अच्छी तरह से मुझे समझाना है, इसीलिए मैंने इस पार्ट को लिया है। पहले आप इसको समझ लीजिए जो मैंने आपको बताया। तो अब मैंने आपको ट्रांजैक्शन क्लियर कर दिया कि ये इंटर स्टेट है। अब एक कोई अमित गुप्ता है इसके अंदर जो चैट में मुझे दिख रहे थे, और अमित गुप्ता जी ने क्वेश्चन शायद डाला है, इन केस सप्लायर डेली बेस सोल्ड गुड्स टू फॉरेन बायर रीच एट सप्लायर premises whether it is export or interstate। अब अमित गुप्ता जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर दिया। आप सीपी में जाइए, सीपी में वो फॉरेनर्स लोग घूम रहे होते हैं और वहीं लोकल शॉप से माल खरीद लेते हैं, लोकल शॉप से माल खरीद लेते हैं।
तो उसे हम इंट्रा माने या इंटर माने या एक्सपोर्ट माने? अमित गुप्ता जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया हम सबके लिए, थोड़ा पॉज कर दे इसको। दूसरा क्वेश्चन ले जिससे एक अच्छा आइडिया लगे आपको। अभी प्रकाश धमेचा जी थे, उनने क्वेश्चन कर दिया, अगर कस्टमर जो मुंबई से आ रहा है और वो रजिस्टर्ड नहीं है और मेरी ट्रांजैक्शन B2C है, क्या है? B2C, यानी मैं तो रजिस्टर्ड हूं सप्लायर, पर मेरा कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है। अब बताइए ट्रांजैक्शन में कोई चेंज आएगा क्या, जो मैंने आपको बताया? अब मैं आपको पहले आंसर दे देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए महाराष्ट्र में किसी कस्टमर है जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो कस्टमर नहीं कहते, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड कस्टमर है। वो चांदनी चौक साड़ी खरीदने के लिए आया, साड़ी खरीदनी थी उसको। उसे मालूम पड़ा कि चांदनी चौक में डिजाइनर साड़ियां बिकती हैं। अब चांदनी चौक से उसने 5-5 लाख की 10 साड़ियां ली, शादी होने वाली थी महाराष्ट्र में। अब किसी को ज्यादा लगे तो 2 लाख कर लीजिएगा, निगोशिएट कर लेते, 1 लाख की कर लेते हैं। राजीव कोहली जी हंसने लगे कि 5 लाख की साड़ियां तो मैं आज तक लेके नहीं आया। सर ने 5 लाख का एग्जाम्पल कैसे डाल दिया? 1 लाख की मान लेते, चलिए 1 लाख की 10 साड़ियां ली, तो 10 लाख की साड़ियां ले ली, 10 लाख की साड़ियां खरीद ली। अब मेरी शॉप पे आया था खरीदने के लिए, अब मुझे बिल फाड़ना है, तो मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? जो प्रकाश धमेचा जी कर रहे हैं, हमेशा प्रकाश जी शायद ऐसे ही कर रहे हैं या ऐसे ही एडवाइस कर रहे हैं। प्रकाश जी मन पे नहीं लेना है कोई बात, मैं तो एग्जाम्पल में थोड़ा हंसाने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए आप लोग को इन्वॉल्व कर लेता हूं। लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंट्रा स्टेट की बिलिंग फाड़ रहे हैं, CGST SGST लगा देते हैं। अगर CGST SGST लगा दिया तो पहले आप समझिए ये SGST चला गया अरविंद केजरीवाल जी को, चला गया ना? चला गया। अब एक कस्टमर महाराष्ट्र से आया है और महाराष्ट्र लेके जाएगा, हम एक बार सोच लेते हैं, लॉजिकल सोच लेते हैं, होगा कैसे वो बाद में करेंगे, पहले लॉजिक लगाते हैं। लेके जाएगा महाराष्ट्र में, कंजम्पशन महाराष्ट्र में होगी, उद्धव ठाकरे छोड़ देगा क्या? वो बोलेगा अरे यार अरविंद जी आपने कैसे ले लिया, ये तो मेरा कस्टमर था, महाराष्ट्र से गया था। तो सप्लायर के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक प्रोविजन है सर। प्रोविजन क्या कहता है? अगर मेरी सप्लाई 50,000 रुपए से नीचे है, कितने रुपए से? 50,000 रुपए से नीचे, तो मैं इंट्रा का बिल फाड़ूं या इंटर का बिल फाड़ूं, कोई भी स्टेट ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। जीएसटी काउंसिल में सभी स्टेट ने सहमति भर ली कि 50,000 रुपए से नीचे हम झगड़ा नहीं करेंगे। इवन दो महाराष्ट्र कंज्यूमिंग स्टेट है, पर 50,000 से नीचे कोई झगड़ा नहीं करेगा। अगर मेरा बिल 50,000 रुपए से ज्यादा का है, जो है 10 लाख रुपए का हो गया ना, तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मालूम? इवन दो ये B2C इनवॉइस है, मुझे अपने इनवॉइस पे एड्रेस फॉर डिलीवरी डालना ही पड़ेगा। मुझे महाराष्ट्र का एड्रेस लेना ही पड़ेगा। नहीं लिया तो आप बोलेंगे नहीं लिया तो, क्योंकि साड़ी वाले के पास 2 प्रॉब्लम तो हमेशा रहती हैं। साड़ी वाले के पास 2 प्रॉब्लम हमेशा रहती हैं। वो 2 क्वेश्चन अपने कस्टमर से कभी नहीं पूछ सकता। पहला क्या नहीं पूछ सकता कि किसके लिए लेके जा रहे हो, और दूसरा क्या नहीं पूछ सकता, कहां लेके जा रहे हो। तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 50,000 रुपए से ऊपर अगर है तो मुझे एड्रेस फॉर डिलीवरी डालना पड़ेगा। अब मैं इसको इंडोर्स करूं, अब तो ईबे बिल आ गया है ना, 50,000 रुपए से ऊपर अगर आप 10 लाख का माल लेके जाएंगे, इंट्रा का बिल फाड़ा होगा और रास्ते में पकड़ लिया तो, और रास्ते में पकड़ लिया तो 129 की पेनाल्टी नहीं लगा सकता, 130 की पेनाल्टी नहीं लगा सकता, सीज भी हो जाएगा। फिर सप्लायर को पकड़ेंगे वो लोग, क्योंकि सप्लायर रजिस्टर्ड है ना।
सप्लायर को इंश्योर करना पड़ेगा कि 50,000 रुपए से अगर ऊपर है तो भैया ई वे बिल जनरेट कर। कौन? सप्लायर। अनरजिस्टर्ड को तो आप पकड़ नहीं सकते, सप्लायर। और जब सप्लायर दिल्ली से मुंबई दिखाएगा तो इंट्रा की बिलिंग तो नहीं फाड़ सकता। अब बताइए, चैट बॉक्स में आप सभी से पूछ रहा हूं, ये वाला पार्ट समझ में? अभी बिल टू शिप टू कोई नहीं बोलेगा, पहले मेरी बात सब समझ के मेरे को आंसर देंगे। समझ में? आप पहले चैट बॉक्स में बताइए, सब कुछ समझ में आया या नहीं आया? कहिए पहले यस, पहले सब यस बोलिए, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा। सो प्रकाश, मैंने आपका ये वाला पार्ट क्लियर कर दिया, सब यस बोल रहे हैं, यानी सब एक लाइन में जुड़ गए, एक लाइन में जुड़ गए। अब मैं एक क्वेश्चन रह गया था ना सीपी में, वो फॉरेनर्स घूमते हैं, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, और फॉरेनर सीपी में वो शॉप्स लगी होती हैं, लोकल शॉप्स, आजकल तो बंद है, क्या करें, कोविड-19 है। लेकिन वो क्या करते हैं, सीपी मार्केट से वो फॉरेनर्स ने वहां से कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया। अगर आप लोग फॉरेन कंट्री में गए हों, होपफुली 99% लोग गए होंगे, एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने भी फॉरेन कंट्री में कहीं से माल लिया तो जो माल लिया एक बिल फाड़ा जाता था। बिल जो आपको मिलता है वो आप एयरपोर्ट पे लेके जाइए, जब आप उस माल को लेके जा रहे हैं तो वो बिल दिखाइए, तो जो जीएसटी लगा है वो वहां की गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देती है ऑन ए कॉन्सेप्ट ऑफ इट इज एक्सपोर्ट, क्योंकि आप अपने साथ उसको लेके जा रहे हैं, अपने साथ उसको। मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, गुड्स की बात। इवन हमारे कंट्री में भी इस सिस्टम को लागू कर दिया गया है। जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, उनने कोई गुड्स परचेज किया और एयरपोर्ट पे वो बिल दिखाया, बिल आप इंट्रा का फाड़िए, इंटर का फाड़िए, लेकिन मैं ऑलवेज यही बोलूंगा, जब फॉरेन टूरिस्ट है और आपको मालूम है कि फॉरेन टूरिस्ट है और वो बाहर लेके जाएगा, इंटर का बिल फाड़िए आप। लेकिन एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वाले में, तो मेरा सजेशन जो हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रकाश ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट लिसन केयरफुली। पहले आप समझिए, पहले अच्छी तरह समझ लीजिए, तभी विद्या। पहले आप लोग ना मुझे कंप्लीट नहीं करने देते, मेरी कंप्लेन है आप लोगों से। आप पहले मुझे टॉपिक को कंप्लीट करने दिया कीजिए, फिर अपने एक्सपर्ट कमेंट चैट बॉक्स में डालिए। मुझे मालूम है आप लैपटॉप पे महारथी हैं, मैं जानता हूं, थोड़ा सा तो धीरज धरो मेरे प्राणी, मैं भी तो थोड़ा बहुत जानता ही हूं ना, तभी तो आज मैं फैकल्टी हूं और आप लिसनर हैं। जब आप आएंगे तब मैं आपकी बात सुना करूंगा। आप सुनिए मेरी बात, ठीक से सुनिए, पहले मैं टॉपिक कंप्लीट करूं, फिर काउंटर कीजिए ना मुझे, मैं हूं ना, दूंगा ना आंसर आपको। लिसन, तो जो टूरिस्ट वाला एस्पेक्ट है, फॉरेन टूरिस्ट वाला एस्पेक्ट है, जब वो लेके जाएगा, अब आप कहते हैं गुड्स उसने यूज कर लिया, गुड्स कौन सा हो सकता है यूज करने वाला? लॉलीपॉप लिया होगा तो वो खा लिया होगा, इंडिया में खा लिया होगा, अब उसकी तो चेकिंग ना आप कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट है सर्विस का, आपको याद है सर्विस का कॉन्सेप्ट? फॉरेन टूरिस्ट ले मेरिडियन होटल दिल्ली में आ जाए और ले मेरिडियन होटल दिल्ली में ठहरे, तो ले मेरिडियन होटल क्या चार्ज करेगा? CGST एंड SGST। क्यों चार्ज करेगा? सर्विस कंज्यूम्ड हो गई दिल्ली में, वो बाहर लेके नहीं जा पाया। अगर फॉरेन टूरिस्ट दिल्ली में आ जाए, ले मेरिडियन होटल में ठहरे, तो सर्विस दिल्ली में कंज्यूम्ड हो गई, तो इसका रिफंड नहीं मिलता, फॉरेन कंट्रीज भी नहीं देती, फॉरेन कंट्रीज भी सर्विसेज का रिफंड नहीं देती, ओनली गुड्स का रिफंड देती हैं। पहले कॉन्सेप्ट एकदम, क्योंकि वो गुड्स परचेज फ्रॉम दिल्ली नाउ टेकन आउट टू जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, USA, गुड्स के केस में रिफंड मिलता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, सर्विस को कंजम्पशन यही मान लिया गया, गुड्स के लिए मान लिया कि वो अपने साथ लेके जा रहा होगा। पर उसने कोई खाने का आइटम ले लिया, तो अब गवर्नमेंट के पास दो चैलेंजेस हैं कि फॉरेन टूरिस्ट को रिफंड कैसे दिया जाए, और अगर गुड्स जो कंजम्पशन बेस्ड बेसिस पे, जिसको कंज्यूम किया जा सकता है, उस पे रिफंड मिले या ना मिले।
तो क्या होना चाहिए प्रकाश? रूल्स आने चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, और फॉरेन टूरिस्ट को कमिट किया गया है, प्रोविजन है जीएसटी में, जीएसटी में प्रोविजन है कि फॉरेन टूरिस्ट को रिफंड मिलेगा, प्लीज। और एक और दूसरी चीज बताऊं, एक केस हुआ था, जब आप बाहर जाते हैं ना, इंडिया से बाहर, एक हम एयरपोर्ट पे हमारा जब इमिग्रेशन हो जाता है तो हमारे लिए एक शॉपिंग का एरिया खुल जाता है। अब वहां से शॉपिंग करके जब आप कोई माल लेके जाते हैं ना, तो उस पर डिस्प्यूट हो गया था कि क्या इसको एक्सपोर्ट माना जाए या जीएसटी लगेगा। एक एडवांस रूलिंग में यह आ गया था कि उस पर जीएसटी लगेगा, पर बाद में एक सर्कुलर के जरिए इसको क्लैरिफाई किया गया कि इमिग्रेशन के बाद जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, वहां से अगर किसी फॉरेन टूरिस्ट ने कोई माल लिया तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज इफ एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। तो जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं उनने परचेज किया होगा जीएसटी पे, राइट? परचेज तो उनका जीएसटी पे ही आया होगा, आउटवर्ड पे नहीं लगा ना, तो उसका रिफंड मैकेनिज्म है उन सप्लायर के लिए जो ड्यूटी फ्री शॉप्स में है। अब फॉरेन टूरिस्ट के लिए अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, अतुल पुरी जी ने एक और इंटरेस्टिंग कर दिया। अतुल पुरी जी अब मुझसे ये कह रहे हैं, हाउ विल द सप्लायर नो दैट फॉरेन टूरिस्ट इज नॉट गोइंग टू बियर द गार्ड? पहले सर, अब इतना सब देखने लगेंगे तो फिर बहुत कुछ देखना पड़ेगा, उसने क्या पहन लिया और क्या नहीं पहन लिया। सिंपल रखिए अपने डिस्कशन को अतुल जी, अगर गुड्स है तो हम मानते हैं वो अपने साथ लेके जाएगा, या पहरा हुआ लेके जाएगा या नया नया लेके जाएगा, पर सर्विस उसने कंज्यूम वहीं यहीं कर ली। ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग मत बनाइए वरना हम कहीं और डायमेंशन में चले जाएंगे। तो अब आप समझ गए हो बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो पहली केस स्टडी मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। टेल मी फर्स्ट केस स्टडी कंप्लीट टू ऑल। पहला जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया या नहीं आ गया? से यस, चैट बॉक्स में यस चाहिए मुझे। यस आ गया, ओके। अभी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट से मुझे यस चाहिए। हाँ, मुझे लगना चाहिए, मजा आना चाहिए मुझे कि हाँ मेरे पार्टिसिपेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं। अब दूसरी केस स्टडी करते हैं। दूसरी केस स्टडी, ओके, दूसरी केस स्टडी इंटरेस्टिंगली करते हैं। अब सर्विस वाला करते हैं जिससे मजा आए, सर्विस वाला। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी ऑफिस दिल्ली में रजिस्टर्ड है। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो भी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, दोनों दिल्ली में रजिस्टर्ड है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली कर रहा हूं मैं। अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले फैक्ट बता दूं फिर क्वेश्चंस पे डालूंगा मैं आपको। सीए दिल्ली रजिस्टर्ड है, सीए दिल्ली रजिस्टर्ड है, और XYZ लिमिटेड जो कंपनी है वो भी दिल्ली रजिस्टर्ड है। XYZ लिमिटेड ने बिमल जैन को स्टॉक ऑडिट करने के लिए असाइनमेंट दिया, और स्टॉक ऑडिट करनी थी। दो प्लांट लोकेशन है, एक मुंबई में और एक कोलकाता में। XYZ लिमिटेड के दो प्लांट लोकेशन है, मुंबई एंड कोलकाता। XYZ लिमिटेड दिल्ली ने कहा बिमल जी इन दो प्लांट की स्टॉक ऑडिट करवानी है, आप करके दे दो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच साइन हो गया। तो मैं अभी बिमल जैन सप्लायर, आप सब XYZ लिमिटेड बन जाइए, XYZ लिमिटेड दिल्ली बन जाइए। अब आपके दो प्लांट हैं, एक मुंबई में और एक कोलकाता में, जिसकी मुझे स्टॉक ऑडिट करनी है। अब इस केस स्टडी में मैं 5 सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व करूंगा: क्रॉस चार्ज, ISD, प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी 5 सब्जेक्ट मैटर एक केस स्टडी के अंदर। तो आपका समझना बहुत जरूरी है, आपका कंसंट्रेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। अब मैंने सिनेरियो क्रिएट किए। पहला सिनेरियो,
बिमल जैन ने 4 लोगों की टीम बनाई और मुंबई प्लांट लोकेशन पे भेज दी और कोलकाता प्लांट लोकेशन पे भेज दी। उन्हें मुंबई एंड कोलकाता ऑडिट की और ऑडिट करके दिल्ली वापस आ गए और दिल्ली में मैंने रिपोर्ट कंपाइल की और क्लाइंट XYZ लिमिटेड दिल्ली को दे दी। अब मुझे इनवॉइस जनरेट करना है। इनवॉइस बिमल जैन दिल्ली टू XYZ लिमिटेड। मैंने ऑडिट की है मुंबई एंड कोलकाता की, पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था XYZ लिमिटेड दिल्ली से। आप लोग बताइए मुझे चैट बॉक्स पे, मेरी ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होगी या इंटर स्टेट होगी? प्लीज इंट्रा या इंटर? ओके ओके ओके। ये ट्रांजैक्शन ऑलवेज, क्योंकि मैं तो XYZ लिमिटेड दिल्ली को ही इनवॉइस जनरेट करूंगा। मेरा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? दिल्ली के साथ था। मुझे मुंबई प्लांट या कोलकाता प्लांट ने इनवॉइस, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, मुझे दिल्ली ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो मैं दिल्ली को ही, XYZ लिमिटेड दिल्ली को ही रेज करूंगा और ट्रांजैक्शन वुड बी इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट CGST SGST लगेगा। एक पार्ट क्लियर किया। दूसरा पार्ट, XYZ लिमिटेड दिल्ली को एक क्रेडिट मिल जाएगी। ये सर्विस तो उसने रिसीव की ही नहीं है। ये सर्विसेज तो मुंबई प्लांट एंड कोलकाता प्लांट को मिली है। दिल्ली XYZ लिमिटेड को क्रेडिट मिल जाएगी। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेल मी, मिलेगी? से यस और नो। मैं आपके आंसर्स देख रहा हूं। अभी एक बंदे का आंसर सही निकला। रमेश आहूजा ने कहा, थोड़ा सा समझ में आया मुझे। अब देखिए, दिल्ली XYZ लिमिटेड क्रेडिट अगर नॉर्मल होता तो नहीं मिलती, उसे ISD का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि ये उसकी सर्विस नहीं है, ये है मुंबई और कोलकाता की। सो ISD का क्या कॉन्सेप्ट है? मेरी हेड ऑफिस है और मैं इनपुट सर्विसेज प्रोक्योर करता हूं फॉर अदर रिसिपिएंट यूनिट अंडर सेम पैन नंबर। आई नीड टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड एज ISD, तभी मैं क्रेडिट लूंगा और फिर इस क्रेडिट को मैं मुंबई प्लांट एंड कोलकाता प्लांट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ये मेरा आंसर है अभी तक। अब एक एक करके स्टेप्स बढ़ेंगे जिससे समझ में आ जाए, क्योंकि मैं क्रॉस चार्ज वर्सेस ISD भी आपको कराऊंगा। पहले आप समझ लीजिए। अमित जी सुन लो, इफ मुंबई कोलकाता इज नॉट रजिस्टर्ड, कॉस्ट। प्रकाश धमेचा जी थोड़े लर्नेड है हमारे बीच में, और उनने कह दिया अगर मुंबई प्लांट और कोलकाता प्लांट रजिस्टर्ड नहीं है तो कॉस्ट। कुछ नहीं हो सकता, आप रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं आपके घर में जाके थोड़ी देके आऊंगा, नहीं मिलेगी, कुछ नहीं है, लॉस। पहले सुन लीजिए पहले अच्छी तरह से। अब मान लीजिए मैं दूसरा सिनारियो क्रिएट करूं, और प्रकाश ठीक से सुनना है आपको। सेकंड सिनारियो, मैंने 4 लोगों की टीम दिल्ली से नहीं भेजी। मैंने बोला यार दिल्ली से भेज, जाने का खर्च, होटल का खर्च, रहने का खर्च, कंजूस आदमी हूं, नहीं भेजा मैंने क्या किया, मैंने अपनी मुंबई ऑफिस और कोलकाता की ऑफिस, मेरी ब्रांच थी वहां पे, मैंने उनसे कहा कि भैया तू मुंबई प्लांट की और कोलकाता प्लांट की ऑडिट कर दे। अब मेरा मुंबई ब्रांच और कोलकाता ब्रांच ने मुंबई प्लांट और कोलकाता प्लांट की ऑडिट कर दी। रिपोर्ट आ गई मेरे पास, मैंने रिपोर्ट कंपाइल की, XYZ लिमिटेड दिल्ली को दी, अपना इनवॉइस भी मैंने CGST SGST चार्ज किया,
पर अब एक ट्रांजैक्शन और करना है हमको। मुंबई ब्रांच और कोलकाता ब्रांच ने दिल्ली बिमल जैन के लिए जो सर्विस दी, क्योंकि मुंबई ब्रांच और कोलकाता ब्रांच को XYZ लिमिटेड से कुछ नहीं मिला था, ना तो दिल्ली ने दिया, ना मुंबई प्लांट, ना कोलकाता प्लांट ने, पर इनने मुंबई ब्रांच और कोलकाता ब्रांच ने जो सर्विस दिल्ली हेड ऑफिस को दी बिमल जैन, GST लगेगा? इज इट क्रॉस चार्ज? Supply of service Yes, sir. between distinct person in the course of furtherance of business, even without consideration, लगेगा. This is called cross charge. This is called cross charge. अब ये लगाएंगे मुंबई टू दिल्ली. विद्या आपको एक बार में कैप्चर करना पड़ेगा. सी विद्या, मैंने क्या कहा, सुनो, ठीक से सुनो आप. मैंने ये कहा मुंबई ब्रांच ने मुंबई प्लांट की स्टॉक ऑडिट की, कोलकाता ब्रांच ने कोलकाता प्लांट की ऑडिट की. अब मुंबई ब्रांच एंड कोलकाता ब्रांच मुझे रिपोर्ट भेज देंगे दिल्ली में, मैं कंपाइल करूंगा और फिर मैं XYZ लिमिटेड दिल्ली को दे दूंगा. यही मैंने कहा ना अभी कुछ देर पहले. अब जब करूंगा तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या मुंबई ब्रांच ने या कोलकाता ब्रांच ने दिल्ली बिमल जैन एसोसिएट HO को कोई सर्विस दी? यही पूछा था मैंने. सप्लाई ऑफ सर्विस हुई थी, यही पूछा था. तो मैंने कहा बिल्कुल हुई थी. दिस इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन. एंट्री टू शेड्यूल 1 इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्रॉस चार्ज. अब जब क्रॉस चार्ज हुआ, विद्या आपको अब समझ में आ गया होगा, तो ट्रांजैक्शन इंट्रा थी या इंटर थी? मुंबई टू दिल्ली, कोलकाता ब्रांच टू दिल्ली. इंट्रा या इंटर? क्विकली बताइए, इंट्रा या इंटर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इंटर. IGST लगेगा. बिमल जैन HO का क्रेडिट ले लेगा और उस क्रेडिट को CGST SGST के लिए यूटिलाइज करेगा. ऐसे ही होगा ना ट्रांजैक्शन? इसी तरीके से होगा. अब मैंने आपको एक चीज बता दी है, क्रॉस चार्ज वर्सेस ISD दोनों पार्ट मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया. लोगों को बहुत डाउट है कि सर ISD का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मैं क्रॉस चार्ज कर दूं, XYZ लिमिटेड मुंबई प्लांट को या कोलकाता प्लांट को बिल रेज कर दे. ऐसे लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं. अब मैं आज आपको सिल्वर लाइनिंग गोल्डन प्रिंसिपल बता रहा हूं, नोट कर लीजिए. क्रॉस चार्ज इज एप्लीकेबल when there is element of service. When there is element of service. मुंबई ब्रांच, कोलकाता ब्रांच बिमल जैन की, उन्हें सर्विस दी थी ना, तभी क्रॉस चार्ज हुआ ना, तभी वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेगा ना. जो XYZ लिमिटेड दिल्ली था वो क्रॉस चार्ज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि वो सर्विस नहीं दे रहा है मुंबई प्लांट को और कोलकाता प्लांट को ना. XYZ Limited Delhi only procuring common input services which is used by other recipient unit, and there is no element of service by XYZ Limited HO, hence ISD registration. अगर आप इसको क्रॉस चार्ज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैजिक मंत्रा दे दूं आपको, मैजिक मंत्रा. और क्यों चाहिए मैजिक मंत्रा? आपको बता दूं मैजिक मंत्रा क्यों चाहिए आपको. ISD में सिर्फ इनपुट सर्विस की क्रेडिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इनपुट और कैपिटल गुड्स की क्रेडिट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. सो XYZ लिमिटेड हेड ऑफिस दिल्ली अगर रजिस्ट्रेशन लेता ISD रजिस्ट्रेशन, तो उसे इनपुट सर्विस के ऊपर क्रेडिट मिल जाती और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था. पर इनपुट और कैपिटल गुड्स
नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब आप इसे क्रॉस चार्ज कैसे बना सकते हैं? देयर हैज टू बी एलिमेंट ऑफ सर्विस। मैंने कहा ना, देयर हैज टू बी एलिमेंट ऑफ सर्विस। कैसे बनाएंगे? अगर मुंबई प्लांट एंड कोलकाता प्लांट एक ऑर्डर प्लेस कर देता दिल्ली एचओ XYZ लिमिटेड को फॉर गेटिंग स्टॉक ऑडिट डन विथ अदर लीगल एंड अदर इंसिडेंटल कॉम्प्लायंसेस। मैंने एक वर्ड यूज किया, अगर मुंबई प्लांट एंड कोलकाता प्लांट अगर एक ऑर्डर प्लेस कर देता, just give me a minute only, just 1 minute only, 1 minute only. Yes, अगर मुंबई प्लांट एंड कोलकाता प्लांट अगर एक ऑर्डर प्लेस कर देता XYZ लिमिटेड एचओ को फॉर स्टॉक ऑडिट विथ अदर लीगल कॉम्प्लायंसेस, तब आप इसे फ्रेम कर सकते थे कि XYZ लिमिटेड ने स्टॉक ऑडिट थर्ड पार्टी बिमल जैन से ली और उससे रिलेटेड लीगल कॉम्प्लायंसेस एंड अदर अलाइड एक्टिविटी डन बाय एचओ for Mumbai plant and Kolkata plant. Then he could have asked, he could have raised cross charge invoice to Mumbai plant and Kolkata plant. अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने क्रॉस चार्ज वर्सेस ISD का जो बताया और इसको कैसे चेंज करना चाहिए, ये जो बताया आपको समझ में आया? से यस इन ए चैट बॉक्स, प्लीज say yes in a chat box. All right, thank you very much. दो पार्टिसिपेंट्स थे, एक हमारी सलोनी मैम है और एक हमारी विद्या मैम है। उनने कहा मुझे समझ में कॉम्प्लिकेटेड है या समझ में नहीं आया। दोनों मैडम से मेरी रिक्वेस्ट क्या होगी मालूम है? अब आप ज्यादा से ज्यादा बिमल जैन को देखिए, उनके वीडियोस देखिए। यस पॉसिबल। शर्मा, रेनू शर्मा ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया। रेनू शर्मा ने एक बहुत अच्छा आंसर ये दिया कि एक ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता था कि मुंबई प्लांट और कोलकाता प्लांट सेपरेटली XYZ लिमिटेड की बजाय सेपरेटली बिमल जैन को कॉन्ट्रैक्ट दे देता। XYZ लिमिटेड दिल्ली नहीं देता, XYZ लिमिटेड मुंबई प्लांट, XYZ लिमिटेड कोलकाता प्लांट एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बिमल जैन को दे देता, तो मैं डायरेक्टली इनवॉइस उनको रेज कर देता। पॉसिबल, कुड हैव बीन डन। सो ये मेरी थी सेकंड केस स्टडी। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं तीसरे केस स्टडी पे आता हूं, तीसरी केस स्टडी, और समझना चाहता हूं कि आप इसे प्रॉपर्ली समझे या ना समझे। तीसरा स्टार्ट करता हूं। सो विद्या एंड सलोनी, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो देखिए, आपको एक कॉम्प्लिकेशन इजी हो जाएगी। स्टार्ट थर्ड वन। देखिए 3 केस स्टडी मुझे लगता है पूरे 6 बजे तक हो पाएंगे। 3 और लूंगा मैं, पर बड़ी इंटरेस्टिंग लूंगा जिससे आपको अच्छा लगे। एक अब गुड्स के ऊपर लेता हूं जिससे आपको इंटरेस्टिंग लगे और समझ में भी आए। आपको फैक्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर फैक्ट मिसलीड हो गया तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको कंसंट्रेशन एक्टिव रखनी है और मेरे साथ रहना है। अब तक मजा आ रहा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, कि आप समझ पा रहे होंगे। कैन आई सी द चैट बॉक्स? अब तक आपको ठीक प्लेस ऑफ सप्लाई मजे के साथ अंदर जा रहा है? कैन यू से यस, सो दैट मुझे लगे हाँ बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं सारे के सारे। ऑल राइट, चलिए चलिए चलिए, ऑल राइट। अब करते हैं तीसरा वाला। ऑल राइट, ठीक है। अरे मेरे भाई राजेश कुमार जी, एक नया आप स्टॉक ऑडिट क्यों लेते हैं? उसको कुछ ऐसी ऑडिट मान लीजिए कि फिनिश गुड्स की ऑडिट कर, कई बार नहीं करते क्या? एचओ नहीं चाहता कि मेरे प्लांट में जो एफजी की जो पोजीशन प्लांट भेज रहा है, आज मैं राजेश से ही पूछता हूँ, ये बैंक ही करता है क्या? ये इतनी एक्सपर्ट ओपिनियन, मैं आपसे पूछता हूँ,
क्या एचओ कभी स्टॉक ऑडिट नहीं करवाता कि प्लांट जो एफजी की पोजीशन बता रहा है वो सही है ना सही है, थर्ड पार्टी चेक कर ले? पूछ रहा हूं मैं आपसे, राजेश जी, आप ही से पूछ रहा हूं। राजेश जी ने लिख तो दिया, राजेश कुमार जी ने, बट स्टॉक ऑडिट इज नॉर्मली अलॉटेड बाय बैंक। अरे यार, भावनाओं को समझो। कभी क्या एचओ नहीं करवाता कि मेरा प्लांट मुझे डिस्क्लोज, प्लांट में चोरी भी तो हो सकती है, प्लांट हो सकता है ना गलत फिगर बता रहा हो, प्लांट इंटरनल ऑडिट के लिए नहीं करवाता? राजेश आ जाओ भैया, राजेश कहां हो आप बताइए? फिजिकल वेरिफिकेशन, हरदीप जी आ गए। अब चैट बॉक्स पे लिखो ना, अब राजेश लिखो चैट बॉक्स पे, सर समझ में आ गया। अब राजेश जी को लिखने में इतना टाइम लगेगा, अब ऐसे थोड़े ही चलेगा। हाँ, अब अंडरस्टूड लिख रहे हैं, अब अंडरस्टूड। सर मैं कई बार क्या जानता हूं मालूम है, मैं आप लोगों को बताऊं, कई बार पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू देम, ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू देम। यार आप टॉपिक समझिए ना, आम खाइए ना, घुटली क्यों गिन रहे हो? टॉपिक समझो, जिस टॉपिक को मैं आपको देना चाह रहा हूं। सिर्फ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको समझाना। अब बैंक देता है, ये देता। चलिए तीसरी केस स्टडी, तीसरी स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले मैंने बोल दिया, क्योंकि मैंने आपको इजी इजी रसगुल्ले दे दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, और कोई भी भागेगा नहीं, और प्रॉपर तरीके से। और जब मैं कंप्लीट करूंगा ना, आप सब बोलेंगे बिमल जी, हमने नहीं सोचा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई इतना इजी तरीके से समझा जा सकता है। ये केस स्टडी उसके ऊपर है। सर चलिए सर सर सब लोग ये कहेंगे कि जैन साहब एक डेट और दे दीजिए। वो बाद में कहते हैं अजय कुमार जी जलेबी खिला रहे हैं हम लोगों को। अजय कुमार जी लिख रहे हैं नाउ जलेबी। नहीं, जलेबी नहीं बनाऊंगा, जलेबी नहीं बनाऊंगा, विल डू सिंपल, जो दैट आपको भी बहुत मजा आए। लिसन केयरफुली नाउ। और सब पहले फैक्ट ठीक से सुनेंगे, फैक्ट एकदम ध्यान से सुनेंगे, सब फैक्ट एक आराम से सुनिए। पहले सबसे पहले मान लीजिए, और ये पहले फैक्ट, जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, उस फैक्ट को मैं लीगल एक जजमेंट भी आ गया है उससे भी कनेक्ट करूंगा। यानी आपको कहीं ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी कि ये लीगल आर्गुमेंट है या नहीं है। राजीव जी आपको मैं देख रहा हूं, आपको पूरा ध्यान देना है एकदम, और सारी चीजें मुझे बता। अब लेट्स से मैं थर्ड केस लेट्स से मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर हूं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ओनली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं जयपुर में रजिस्टर्ड हूं, राजस्थान में रजिस्टर्ड हूं। मैंने एकदम केस लॉ के बेसिस पे इसको बना दिया। मैंने केस स्टडी को प्रैक्टिकली जो उस केस स्टडी जो उस जजमेंट में था वैसे सेट कर दिया कि मैं मेन वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैं जयपुर राजस्थान में रजिस्टर्ड हूं। अब मुझे कर्नाटका श्री सीमेंट लिमिटेड, क्लाइंट का नाम भी मैंने आपको बोल दिया क्योंकि जजमेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। श्री सीमेंट लिमिटेड कर्नाटका में रजिस्टर्ड है, बेंगलुरु। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, बिमल जी आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी बेंगलुरु में बनानी है। मेन कॉन्ट्रैक्टर राजस्थान में रजिस्टर्ड है, क्लाइंट कर्नाटका रजिस्टर्ड है, और जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी बेंगलुरु में बननी है। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए, इसको मैंने इंटरप्ले किया है रजिस्ट्रेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एंड आईटीसी, तीन टॉपिक को मर्ज किया मैंने एक केस स्टडी में। बिमल जैन को जो जयपुर में रजिस्टर्ड है, क्या उसको कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी? प्लीज टेल मी। बिमल जैन जो जयपुर में रजिस्टर्ड है, क्या उसे कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी? आपको जो मन में आए आप चैट बॉक्स में डालिए, यस नो, जो आपके मन में आए। आई रियली वांट टू सी।
जो आपके मन में आए। यस एंड नो आपने डाल दिया। अब मैं आपको बोलता हूं, अब मेरा आंसर सुन लीजिए, आंसर सुन लीजिए। आंसर बोलने से पहले मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूं आपके लिए। अगर 29 स्टेट में मुझे अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो जिन जिन ने कहा मुझे कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो आप सब क्या चाहते हैं, मैं 29 स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन लूं? क्या आपकी मनसा ये है? अगर 29 स्टेट में अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, तो वो जीएसटी के रिटर्न भरते ही रह जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा वो। अब मैं आपको आंसर्स देता हूं। नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इन कर्नाटका। जस्ट लिसन केयरफुली दीपक जी, जस्ट मेरे साथ। कोई अभी चैट बॉक्स में तब तक कुछ ना डाले जब तक मैं आपसे ना बोलूं। No registration would be required in Karnataka for simple reason. Location of supplier जो जीएसटी में कॉन्सेप्ट है, उसके लिए 4 लैडर बनाए गए हैं। 4 लैडर मतलब 4 स्टेप्स। नॉर्मली लोकेशन ऑफ सप्लायर, द प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर आई एम रजिस्टर्ड, दैट इज जयपुर। हमेशा पहला स्टेप्स वही माना जाएगा। अनलेस आई गॉट फिक्स एस्टैब्लिशमेंट इन बेंगलुरु फॉर एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। और फिक्स एस्टैब्लिशमेंट किसको बोलते हैं? फिक्स एस्टैब्लिशमेंट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन और टेक्निकल रिसोर्सेस। यानी अगर मैं जयपुर से बैठ के अगर उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज, कंट्रोल और मैनेज कर रहा हूं, जयपुर से बैठ के, सिर्फ साइट ऑफिस खुली हुई है, पर कंट्रोल, मैनेज, सुपरविजन जयपुर से हो रहा है, तो मुझे बेंगलुरु में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको सुपरवाइज, कंट्रोल और मैनेज कर्नाटका, बेंगलुरु की किसी ऑफिस से करता, तभी रजिस्ट्रेशन लेना था। पहला पार्ट मैंने आपको बताया। अब इसमें जो कॉम्प्लिकेशन लोगों के माइंड में है, उसको डिस्कस करता हूं। और इस जजमेंट में यह डिस्कशन हुआ है जो लोगों के माइंड में आ रहा है। पहला, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में सीमेंट और आयरन स्टील चाहिए होगा। सो सप्लायर जो है, सप्लायर जो सीमेंट और आयरन स्टील मुझे भेजेगा, तो मान लीजिए बेंगलुरु में प्रोजेक्ट चल रहा है और मैं कर्नाटका की कोई दूसरी जगह को हम ले लेते हैं, आप गोमटेश्वर बोल लीजिए जो हमारा धार्मिक स्थल है। सप्लायर ऑफ सीमेंट एंड आयरन स्टील इन गोमटेश्वर, बट इन कर्नाटका, supplying cement and iron steel from Gometeshwar to Bengaluru, बिल करेगा जयपुर, क्योंकि मैं जयपुर में रजिस्टर्ड हूं, और माल डिलीवर करेगा बेंगलुरु में। अब इसमें हम जीएसटी कैसे लगाएंगे? ये है बिल टू शिप टू, बिल टू जयपुर, शिप टू बेंगलुरु। तो एक 10(1)(b) का प्रोविजन है, 10(1)(b) ऑफ आईजीएसटी एक्ट। नोट कर लीजिएगा, जो नोट बना रहे हैं उनके लिए, 10(1)(b) ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इस केस में लॉ ये बोलता है, जो सप्लायर गोमटेश्वर में है, जो सीमेंट और आयरन स्टील दे रहा है, दो वो माल की डिलीवरी बेंगलुरु में करेगा, बिल टू जयपुर करेगा, तो 10(1)(b) बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ इंटरमीडियरी जयपुर, जिसके कहने पे ये माल बेंगलोर की साइट पे डिलीवर्ड हुआ, बेंगलोर की साइट पे डिलीवर्ड हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी जयपुर। माल
इवन दो आपका बेंगलुरु में डिलीवर्ड हो रहा है, बट वो चार्ज करेगा आईजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी। अब जयपुर वाला क्या करेगा? जो मैं हूं, मैं उसकी क्रेडिट ले लूंगा। अब मैं भी तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का इनवॉइस रेज करूंगा ना श्री सीमेंट लिमिटेड को, करूंगा ना? जयपुर से कर्नाटका करूंगा ना? तो मेरी बिलिंग भी आईजीएसटी होगी। तो जो आईजीएसटी की क्रेडिट मुझे मिली, परचेज ऑफ सीमेंट एंड आयरन स्टील, that I'm going to use for discharging IGST charge to Sri Cement Limited. Location of supplier Jaipur. Place of supply would be location of immovable property. क्योंकि मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मैं आईजीएसटी लगाऊंगा। तो यानी एक चीज मैंने आपको फंडामेंटल बताया था ना, क्या बताया था? जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बताया था ना। अब देखिए मैं प्रूफ करता हूं कैसे मैंने इसको किया। इसको मैंने कैसे कंप्लीट किया। जो सप्लायर था उसने आईजीएसटी चार्ज किया राजस्थान, पर राजस्थान को एसजीएसटी नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि कंजम्पशन वहां थोड़ी हुई है, कंजम्पशन तो कर्नाटका में हुई है। उसने आईजीएसटी की क्रेडिट ली, मेन कॉन्ट्रैक्टर राजस्थान, बट फिर मैंने इसको बिल कर दिया आईजीएसटी कर्नाटका। यानी जो आईजीएसटी राजस्थान ट्रेवल करके आया वो अगेन कर्नाटका ट्रेवल कर गया। यानी एसजीएसटी कंपोनेंट ऑफ आईजीएसटी हैज गॉन बैक टू कर्नाटका। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। एक, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ा और क्रेडिट का ब्लॉकेज नहीं हुआ। इसमें एक और एंगल डाल दिया गया कि मान लीजिए मैं राजस्थान सप्लायर से अगर सीमेंट एंड आयरन स्टील लेता, नॉट कर्नाटका, राजस्थान वाले किसी सप्लायर से लेता और उससे बोलता अब ये माल तू बेंगलुरु में डिलीवर कर, बिल टू जयपुर। सो मे बी अजमेर का सप्लायर होता, अजमेर सप्लायर, बिलिंग टू जयपुर, शिपिंग टू बेंगलुरु। तो वो क्या चार्ज करता? 10(1)(b अगर हम देखें तो अब आप लोग मुझे पहले बताइए, आप लोग मुझे अब चैट बॉक्स में ये बताइए कि अगर ये ट्रांजैक्शन 10(1)(b बिल टू शिप टू है, राजस्थान सप्लायर बिलिंग टू बिमल जैन राजस्थान बट शिपिंग टू बेंगलुरु, तो दो लेयर है ना इसके अंदर। तो पहली लेयर क्या होती? सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी? प्लीज बताइए चैट बॉक्स में प्लीज। प्रदीप कपूर ने आंसर दे दिया है, विनोद कुमार खन्ना का आंसर गलत है, बाद बाकी सभी लोग। और भी मैं चाहता हूं चैट बॉक्स में खुल के जो मन में आए बताइए, गलत सही जो मन में आता हूं। मैं तो कह चुका हूं कि आपके मन में जो आए। सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, इंट्रास्टेट। मैं उसकी क्रेडिट लेता राजस्थान में और मेरी बिलिंग होती आईजीएसटी, तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट यूज फॉर डिस्चार्जिंग आईजीएसटी, अल्टीमेटली एसजीएसटी क्रेडिट हैज गॉन बैक टू कर्नाटका। सो मैंने दोनों ट्रांजैक्शन करके आपको बता दिए, राइट? अब ये दोनों ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको इस केस स्टडी में दो तीन चीजें मैंने बड़ी इंटरेस्टिंगली दी कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को हर स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन लेना है। आंसर इज नो। मैंने 10(1)(b बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन जो होती है वो समझाया, लेकिन एक डाउट आपके माइंड में हो सकता है कि बिल टू शिप टू जो ट्रांजैक्शन है इसमें तो सीमेंट एंड आयरन स्टील था बट यूज फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, 100% हो सकता है। तो ये ट्रेडिंग ऑफ गुड्स भी हो सकता था और गुड्स यूज फॉर सर्विसेज भी हो सकता है। सिमिलरली सर्विसेज फॉर गुड्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैंने आपको वे फॉरवर्ड दे दिया। अब मुझे आप बताइए, मैं आप सबसे एक चीज पूछ रहा हूं,
ये जलेबी थी जब मैंने स्टार्ट किया था, जलेबी थी। और जलेबी जब मैंने आपको परोसी और आपको समझाया, एक टीएनडी इलेक्ट्रिकल्स एडवांस रूलिंग आई है फ्रॉम कर्नाटका एडवांस रूलिंग, कर्नाटका एडवांस रूलिंग, आप नोट कर लें, टीएनडी इलेक्ट्रिकल्स कर्नाटका एडवांस रूलिंग ने ये पूरा केस स्टडी जो मैंने आपको बताया, ये ऑलरेडी मैंने बहुत पहले एक बार मेरा एआईएफटीपी में एक सेमिनार हो रहा था, एआईएफटीपी में, और मैंने ये ऑलरेडी केस स्टडी कम्युनिकेट कर दी थी। उसके बाद मैंने टीएनडी इलेक्ट्रिकल वाला ये एडवांस रूलिंग देखी थी, जो अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। 3 महीने पहले जब मैंने एक वेबिनार किया था तब एक्सप्लेन किया था। आज चूंकि प्लेस ऑफ सप्लाई वाला प्रोविजन था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। होप आपको समझ में आ गया होगा। बट अब एक चीज रह गई है जो अमित गुप्ता ने डाली है। अमित जी ये कह रहे हैं, बट इफ सब कॉन्ट्रैक्ट गिवन टू एनी बेंगलोर पार्टी कैन ही रेज आईजीएसटी बिलिंग, ये अमित ने डाला। अब रेनू भी एक चीज पूछ रही हैं, सर इफ आई जयपुर सब कॉन्ट्रैक्टेड टू अदर सब कॉन्ट्रैक्टर, सेम चीज, वो सब कॉन्ट्रैक्ट वाली ही बात कर रही हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या होगा? मैंने एक एनालॉजी की। क्या एनालॉजी की मालूम है? मान लीजिए मैंने कर्नाटका में कोई सब कॉन्ट्रैक्टर एंगेज किया, कर्नाटका में सब कॉन्ट्रैक्टर एंगेज किया। सब कॉन्ट्रैक्टर मेरी इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम कर रहा होगा। आपके माइंड में डाउट कहां आ रहा है, मैं वो पहले बता देता हूं। आपके माइंड में डाउट ये आ रहा है कि सब कॉन्ट्रैक्टर, लोकेशन ऑफ सप्लायर बेंगलुरु है, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो वो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा और ये क्रेडिट राजस्थान में फ्लो करेगी नहीं। तो इसके लिए मुझे कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन लेना है। आपके माइंड में ये वाला डाउट आ रहा है, जो रेनू ने पूछा, जो अमित ने पूछा, जो और पार्टिसिपेंट्स के माइंड में होगा। एज पर मी, बिलीव मी, subcontractor can raise IGST invoice, and in turn Jaipur will take the credit, and then I'm going to raise invoice from Jaipur to Sri Cement Limited, Jaipur to Sri Cement Limited Bengaluru IGST, यानी जो SGST डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है वो ट्रेवल कर गया, वो ट्रेवल कर गया। पहले वो राजस्थान गया, फिर राजस्थान से आपका कर्नाटका में आ गया। नो क्रेडिट लॉस, नथिंग। मैं आपको प्रोविजन बता दूं, जब प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी आप देखते हैं ना, तो वर्ड यूज करता है डायरेक्टली रिलेटेड। मेन कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट सब कॉन्ट्रैक्टर की not directly related. To my mind, I'm of the opinion, in my humble opinion, subcontractor can charge IGST from Bengaluru, and then at Jaipur I will take the credit and then use this credit for discharging IGST liability. Ultimately मुझे ये इंश्योर करना है कि SGST कर्नाटका को मिलना चाहिए, जो मिल गया। अब नाउ टेल मी, मैंने अमित और रेनू दोनों के आंसर दिए, आपको ये समझ में आया या नहीं आया? पहले ये बताइए, पहले आप लोग ये बताइए, जो पार्ट मैंने आपको समझाया पहले वो पार्ट आया या नहीं आया? प्रकाश ने क्वेश्चन डाला है। टू माय माइंड मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे करना है। मैंने हम्बल ओपिनियन, अपनी हम्बल ओपिनियन में डाल दिया। रेनू, मैंने अपनी बात आपसे कह दी ना, अब आपका टेक है कि आप कैसे लेना चाहते हैं। अब मैंने अपना व्यू बता दिया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन एक बंदे ने डाला कि लेबर मैं वहीं से डिप्लॉय करता हूं तो क्या फिक्स एस्टैब्लिशमेंट में आ जाएगा? नहीं आएगा। फिक्स एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है characterized by sufficient degree of permanence of human or technical resources। यानी आपने अगर इनकम टैक्स में फिक्स एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन पढ़ी हो, वो क्या बोलता है? एक परमानेंस होना चाहिए जो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। दैट इज बीइंग डन फ्रॉम जयपुर ऑफिस।
दैट इज माय आंसर. सो मैंने ये थर्ड केस स्टडी आपके साथ. अब चैट बॉक्स में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि हाँ यस जलेबी थी, पर जलेबी आपको सही ढंग से परोसी गई है. जलेबी में मजा आया या नहीं आया? जलेबी अगर अच्छी लगी तो यू कैन ऑलवेज से सर मजा आ गया. आप लोग ये कहते कि हाँ मजा, जलेबी वो स्वीट, तब ठीक है, फिर तो ठीक है. क्लियरली अंडरस्टूड, तो फिर तो ठीक है. चलिए ऑलराइट. अब दो सिंपल कर लूं, दो सिंपल. चलिए मजा आया. सुनील जी ने कहा, अमित जी ने कहा, अमित जी ने भी कह दिया, अब तो अमित जी ने इंडोर्स कर दिया. अमित जी क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने भी इंडोर्स कर दिया. अच्छा, अब मैं दो करता हूं और दो करके आज हम क्लोज करेंगे. दो केस स्टडी और बड़ी इंटरेस्टिंग करेंगे, जिसपे गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है. गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया है, तो आपको बड़ा मजा भी आएगा और बड़ा अच्छा लगेगा. Sir, what about if order placed by Bangalore to Maharashtra property? See, order placing is not going to be relevant when we look at immovable property. Please. Now come back to the fourth case study. Srinivas, time is less. Please come back to the fourth case study now. मैं दिल्ली सर आवाज की डिस्टर्बेंस कहीं हो रही है. ये सर किसी का मोबाइल बज रहा है, मोबाइल. I don't know. That is creating trouble to me. Maybe रिक्वेस्ट करूं जो हमारे पैनलिस्ट है वो भी अपने आप को म्यूट कर लें, एक्सेप्ट मी. हाँ, जो पैनलिस्ट है सब म्यूट कर लें अपने आप को, एक्सेप्ट मी. जितने भी पैनलिस्ट हैं, हो सकता है उनके एंड से मोबाइल का धम धम आ रहा होगा, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है. सुनिए नेक्स्ट. मान लीजिए, एंड आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, और ये दो केस स्टडी बड़ा मजा आएगा आपको. सुनिए, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं. मुझे कोरियन सप्लायर ने बोला, बिमल मेरा ये प्रोडक्ट है, एलजी की बात कर लेते हैं, एलजी का प्रोडक्ट है. उनने मुझसे कहा, बिमल मुझे इंडिया में ये मार्केट डेवलप करना है. अभी उनका एक नया बैटरी ऑपरेटेड मास्क लॉन्च हुआ है फॉरेन कंट्रीज में, बाहर इंडिया में भी लॉन्च नहीं हुआ है. उनने कहा ये बैटरी ऑपरेटेड मास्क है, मुझे इंडिया में इसको प्रमोट करना है. बिमल जी आप कर पाओगे? तो मैंने कहा बिल्कुल कर लूंगा. तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में. मैंने कहा मैं कस्टमर आइडेंटिफाई कर देता हूं आपके लिए, आप कस्टमर को डायरेक्टली सप्लाई कर देना, और जो भी आप लोग की बिलिंग होगी उसका 10% कमीशन मुझे दे देना. मैंने ये बात की होंगी. तो अब इस सिचुएशन में बिमल जैन ने क्या किया? बिमल जैन को कॉन्ट्रैक्ट मिला एलजी कोरिया से टू डू सेल्स प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू द फॉरेन सप्लायर. फॉरेन सप्लायर ने माल डायरेक्टली सप्लाई किया कस्टमर इन इंडिया. अब मैंने अपना एक इनवॉइस 10% का रेज किया एलजी कोरिया को, ये कहते हुए कि भैया मैंने अपनी सर्विस दे दी, नाउ यू पे मी माय कंसीडरेशन. अब क्वेश्चन ये है कि जो मैंने इनवॉइस दिल्ली से कोरिया रेज किया, इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? चैट बॉक्स में आप लोग बताइए, एक्सपोर्ट है या नहीं है. अर्पित कहते हैं यस, और सभी का मत है नो. और भी कोई कुछ, खुशबू कहती हैं यस. ऑलराइट, सो मुझे दो बंदे मिले जो मेरे साथ चलने को तैयार हैं. यस, सो इंटरमीडियरी पंकज तीसरे हो गए. अच्छा, और कोई मानने को तैयार नहीं है? प्रकाश नहीं मानने को तैयार है आप मेरे साथ? अरे रविकांत जी भी आ गए, अलका भी आ गई, अब कपिल, ये लोग सब कहते हैं कि एक्सपोर्ट है. अब देखिए मैं आपको बताऊं, पहले प्रोविजन बता देता हूं, फिर आपको कंक्लूड करूंगा. इंटरमीडियरी मींस ए पर्सन हु इज एजेंट और ब्रोकर who is arranging or facilitating supply of goods or services between two persons. Korean supplier
customer in India. So I'm intermediary. पहला मैं intermediary बन गया. अब अगर मैं अपने आप को एक्सपोर्ट कहूं तो मुझे सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए मुझे कंडीशंस दे दी गई हैं. क्या क्या कंडीशन दी गई हैं? पहला, सप्लायर मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया, सेटिस्फाई कर दी. सेकंड, कस्टमर recipient must be located outside India, satisfy कर दी. Third, money should be received in convertible foreign exchange, satisfy कर दिया, क्योंकि मुझे पैसे भी convertible foreign exchange में मिलने हैं. चौथा, we should not be merely establishment of distinct person. So मैं independent हूं और LG कोरिया independent है, so we are not merely establishment of distinct person. लास्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए. इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए. सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी, जो सुन रहे हो जरूर नोट कर लें. 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी रेड विथ सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ IGST एक्ट. इंटरमीडिएरी के लिए उनने ये कह दिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर. लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर जो मैं दिल्ली था और प्लेस ऑफ सप्लाई भी लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली हो गई, तो दोनों ट्रांजैक्शन मेरे इंडिया में हो गए. हैंस इट इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. GST लगेगा 18%. ट्रांजैक्शन इंट्रा बोले या इंटर बोले, एक सज्जन थे ना जो मुझसे उस टाइम पे डिस्कशन कर रहे थे जब गुड्स वाली फॉरेन टूरिस्ट की बात आई थी. इट वुड बी इंट्रा स्टेट एज पर वन ऑफ द FAQ frequently asked question in the banking and financial services. इंट्रा स्टेट CGST एंड SGST लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. इंट्रा स्टेट. अब मैंने एक पार्ट ऑफ स्टोरी कर दी, अब दूसरी पार्ट ऑफ स्टोरी आपको अब करनी है. दूसरी पार्ट अब आप लोग मुझे आंसर देंगे. मैंने ये वाला पार्ट कर दिया है, अब दूसरी ओपिनियन मुझे आपसे लेनी है. मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूं. मारुति लिमिटेड इंडिया दिल्ली रजिस्टर्ड, मान लीजिए दिल्ली रजिस्टर्ड और हरियाणा रजिस्टर्ड. उसने फॉरेन कमीशन एजेंट, फॉरेन में कोरिया में कोई कमीशन एजेंट है, मुझे बना दीजिए, कुछ भी नाम मेरा रख दीजिए, मैं फॉरेन कमीशन एजेंट हूं. मुझसे कहा बिमल आप कोरिया में हमारा कस्टमर बेस आइडेंटिफाई कर दो, और ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सही चाहिए होगा. मैं पहले, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद अगर आप मुझे सही आंसर नहीं देंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा. मैं मान लूंगा कि मैं फेल हो गया. तो मेरा आज पास होना और फेल होना आप पे डिपेंडेंट है. तो आप सब आज मुझे पास करेंगे. मैं इसी माइंडसेट के साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं. रिपीट कर रहा हूं फिर से फैक्ट, जिससे विद्या फिर से वापस ना आए, सलोनी फिर से वापस ना आए और ये कहे कि मुझे समझ में. और ऐसा नहीं कि आप सब कोशिश जरूर कीजिए. पास और फेल गीता में लिखा है ना, कर्म करो, फल की चिंता नहीं करनी है. तो आप घबराइए मत, पास और फेल तो मैं होऊंगा, आप कर्म तो कीजिए कम से कम मेरे साथ. मैं तो ये चाहता हूं आपसे. सुनिए आप केयरफुली. मारुति लिमिटेड हरियाणा रजिस्टर्ड ने कोरियन एक कमीशन एजेंट को पकड़ा और कोरियन कमीशन एजेंट से कहा कि भैया तू मेरा प्रोडक्ट वहां पे कोरिया में डेवलप करवा दे. सेल्स, प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट बिलोंगिंग टू इंडियन सप्लायर. मैंने उल्टा ही किया बस ट्रांजेक्शन को. और सेम तय था कि मारुति कस्टमर को सप्लाई करेगी और वो फॉरेन कमीशन एजेंट एक बिल रेज करेगा मारुति को. तो फॉरेन कमीशन एजेंट आउटसाइड इंडिया, सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट मारुति इज इन इंडिया. मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आप सभी से है,
क्या मारुति को रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा कराना पड़ेगा? विद अ रिवर्स चार्ज जीएसटी लीविएबल, प्लीज टेल मी, इन द हैंड्स ऑफ मारुति लिमिटेड। और आपके आंसर मुझे बताएंगे मैं सही हो पाया या नहीं हो पाया। अभी भी मैं आंसर देख रहा हूं। मैं मैक्सिमम लोगों से आंसर चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि कुछ लोग मुझे आंसर करें, मैं चाहता हूं मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ डालें। कम से कम समझ में तो आए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर हुई और हम कहां तक पहुंच पाए। चलिए, मैंने आंसर्स देख लिए। अच्छा, अब जो 2-3 पार्टिसिपेंट्स, देखिए मैं एक रिक्वेस्ट और करूं। कुछ पार्टिसिपेंट्स क्या होता है ना कि जब लास्ट फेग एंड आता है तो फटाफट भागना चाह। देखिए फिजिकल सेमिनार में एक फायदा होता था, हमें मालूम पड़ जाता था ये मिस्टर रंजन उठ के जा रहे हैं, मिस्टर मंजन उठ के जा रहे हैं। जूम वाले में तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या है मालूम है? कब आए कब गए क्या आता पता। इस बेचारे को बैठा दिया एयर होस्टेस की तरह, खड़ा है, जब तक आप प्लेन से बाहर निकलेंगे नहीं तब तक ये हिलेगा नहीं यहां से। तो मेरी भी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट होती है, देखिए आज जब प्रोग्राम चालू हो रहा था तो राजेश जी ने एक डिस्कशन किया कि 300 लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिए हैं और अब तक 150 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नॉमिनल फीस रख देते हैं। मैं सच बताऊं, आने वाले टाइम में अगर एजुकेशन फ्री में आप बांटेंगे ना तो उसकी वर्थ नहीं है, वर्थ नहीं है। लोगों को लगेगा दे विल टेक इट फॉर ग्रांटेड। अरे आज यहां नहीं मिलेगा कल वहां मिल जाएगा, कल यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, कल यहां से नहीं वहां से मिल जाएगा। मैं सच बताता हूं, लंगर में अतुल पुरी जी बोलते हैं, इट इज सैड दैट मेंबर्स ज्वाइन नॉट फॉर नॉलेज बट फॉर सीपीआरस। इट इज आयरनी फॉर आवर प्रोफेशन। सीपी कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया था कि हम अपने नॉलेज को अपग्रेड करें, हम एडवांस हों। मैं 1-2 मिनट लेता हूं, आप मुझे अदरवाइज फील मत कीजिए। आप लोग जानते हैं मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बंदा नहीं हूं और मैं पॉलिटिक्स में आने वाला भी नहीं हूं और मैं आपसे वोट भी नहीं मांगने वाला। तो मेरी बात एज ए प्रोफेशनल आप जरूर सुनिए। देखिए आपका नॉलेज जितना शार्प होगा ना उतना वो आपकी प्रैक्टिस में वैल्यू ऐड करेगा, आपकी फीस को बढ़ाएगा, आपकी एक्सीलेंसी को बढ़ाएगा, आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर आज हम गुरुजी को इनकम टैक्स में सुनते हैं, डॉक्टर गिरीश आहूजा जी को, आज इस एज पे पहुंच गए हैं, बहुतों के लिए रोल मॉडल है, मेरे लिए भी रोल मॉडल है। मैं तो उनके साथ मैंने रात भर रूम में 3-4 बार मुझे मौका मिला फॉर्चुनेटली एक ही रूम में रुकने का, गुरुजी के साथ एक ही रूम में रुकने का। तो मैंने एक बार गुरुजी से पूछा था, तब मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत करता था, तो मैंने गुरुजी से पूछा था गुरुजी प्रेजेंटेशन की स्किल सेट कैसे बढ़ानी चाहिए। तो तब मैं उनके साथ ही गया था, तो वो इनकम टैक्स पे बोलते थे, तब मैं सर्विस टैक्स पे बोलता, तब जीएसटी था नहीं। तो उन्होंने मुझे एक गुरु मंत्र दिया था। उनने मुझे क्या गुरु मंत्र दिया था? उन्होंने कहा बिमल तू एक्सटेम्पोर बोलना स्टार्ट कर। एक्सटेम्पोर समझ गए ना? नो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीछे पीपीटी नहीं चलनी चाहिए, और लोगों के साथ कनेक्ट कर, जो लोग तुझे समझ पाए, लोगों के माइंड में वो वाली बात जाए। मैंने वो दिन था गुरुजी की बात को बांध लिया अपने साथ, आई जस्ट टाइड अप। एंड आपने देखा होगा कि जब भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई सीपीआर का कोई प्रोग्राम है, वहां पे मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं देता। मैं एक स्टेप को 2 घंटे से बोल रहा हूं विथ नो प्रोविजन इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे पास कोई सामने कोई बुक नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, आपकी आंखों में प्रोविजन को रीड कर रहा हूं। जब आप हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं तो मुझे समझ में आने लगता है कि हाँ मेरा प्रोविजन सही जा रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है। और अगर हम इसको वैल्यू ऐड करेंगे, ये कमिटमेंट मैं, आप क्यों इतने सेमिनार अटेंड करते हैं? सीपीआर से एक टाइम पीरियड है, आप वही अटेंड कीजिए जहां आपको सीखना है, जहां आपको पढ़ना है। हर सेमिनार में अपना मेंबरशिप नंबर डाल सीपीआर ले, क्यों नहीं करना चाहिए? आप वही सेलेक्ट कीजिए जो आपको खाने में पसंद है। मुझे खाने में ये पसंद है, यही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। मेरी चॉइस भी ऐसी है। जीएसटी में करता हूं तो जीएसटी करता हूं, पूरा तन मन धन तीनों से।
अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन के आंसर्स पे आता हूं। पहले आंसर बता दूं, पहले आंसर बता दूं, पहले आंसर बता दूं, जीएसटी रिवर्स चार्ज में नहीं लगेगा। जिन जिन ने आंसर रिवर्स चार्ज में यस लगा दिया था, वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाए, उनके माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं गया। कोई खुशबू मित्तल हैं, मैं कई सेमिनार मेरे वो अटेंड करती हैं, मैंने देखा है, लास्ट में उनका भी था, लास्ट कई लोगों ने यस कहा था, तो यस वाले जितने थे इन लोगों ने मुझे आज फेल कर दिया। विसी ने मुझे फेल कर दिया, विनय ने मुझे फेल कर दिया, संजय गोयल जी ने फेल कर दिया, दीपक चौधरी जी ने कर दिया, इन सब ने, मैं देखिए आपके चैट बॉक्स से मैं अपने आप को फेल मानता हूं। अब मैं बता दूं क्यों रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अब सुनिए, ठीक से सुनिए, इसीलिए कहता हूं ना, अगर कंसंट्रेशन आपका इधर उधर भागा ना, आप नहीं समझ पाएंगे, आपको कंसंट्रेशन को सही करना पड़ेगा। देखिए क्यों नहीं लगेगा, सुनिए अब आप मेरी बात। फॉरेन कमीशन एजेंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर, location of supplier. Listen very carefully. Mudit, now listen. Now no one should write in a chat box. Listen carefully. Location of foreign commission agent was Korea. कोई डाउट नहीं है, राइट? रिवर्स चार्ज जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे लगता है ना, उसमें 3 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? सप्लायर आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, रिसिपिएंट इंडिया में होना चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होनी चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होनी चाहिए। अब इस 3 पैरामीटर पे हम देखेंगे रिवर्स चार्ज बनता था या नहीं बनता था। जिन जिन ने यस कहा वो गलत, तो उनको ही जज करना है। लोकेशन ऑफ सप्लायर कोरिया था, कोई डाउट नहीं। रिसिपिएंट इंडिया था, कोई डाउट नहीं। क्या प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया था? 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी, इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी इंटरमीडियरी के लिए यही प्रोविजन मैंने दिया ना कि प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंटरमीडियरीज, लोकेशन ऑफ सप्लायर जो आउटसाइड इंडिया है, पीओएस इज आउटसाइड इंडिया, एम आई राइट? तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। पीओएस शुड बी इन इंडिया, होना चाहिए था, तभी रिवर्स चार्ज लगता। तो जब लोकेशन ऑफ सप्लायर बाहर है, प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं हुआ, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अब बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं लगेगा? प्लीज टेल मी कि हाँ रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, प्लीज टेल मी। तो जिन जिन ने मुझे फेल किया उन सबकी धुलाई, पक्की धुलाई। जिन जिन ने फेल किया उनकी पक्की धुलाई। अब कहां धुलाई करनी है ये बता देना आप लोग मुझे, सबकी पिटाई होने वाली है। अब एक और पार्ट, इस जजमेंट में एक और चीज हुई। इस जजमेंट में क्या हुआ मालूम है? इस जजमेंट में पिटिशनर ने कोर्ट को ये कहा, कोर्ट में पिटिशनर ने ये कहा, लॉर्डशिप ये तो बड़ा गलत है। जब मैं यहां से एक्सपोर्ट करता हूं, इंडियन कमीशन एजेंट, जब मैं भेजता हूं, जब मैं ओके जब मैं इंडियन कमीशन एजेंट इंडिया से बाहर फॉरेन सप्लायर को देता है, आप कहते हैं एक्सपोर्ट नहीं है, 18% जीएसटी लगेगा। मैं इंडिया के लिए कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा हूं, और जब रिवर्स केस किया तो मेरा फॉरेन कमीशन जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है वो इंडिया से बाहर जा रहा है, और आप उस पर रिवर्स चार्ज लगाते नहीं है। और पिटिशनर ने कहा सर एक कॉपी पेस्ट प्रोविजन है सर्विस टैक्स का। सर्विस टैक्स में ये चेंज हुआ था 1 अक्टूबर 2014 से, जिसको आपने कॉपी पेस्ट कर दिया जीएसटी में। और एक रिट फाइल हुई थी गुजरात हाई कोर्ट में। वैसे गुजरात हाई कोर्ट सारे पॉजिटिव जजमेंट दे रहा है। इस जजमेंट में गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया, क्योंकि रिट इसी बात पे थी
whether this provision, place of supply for intermediary is unconstitutional. इसी बात पे रिट फाइल हुई थी. ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट हैज सेड दिस इज द लॉ एज ऑन डेट. मुझे आपकी बात समझ में आती है कि इंडियन कमीशन एजेंट सर्विस फॉरेन सप्लायर को दे रहा है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ला रहा है, रिवर्स केस में जीएसटी नहीं लगता, सब समझ में आ रहा है, पर मैं लॉ के अलावा कुछ नहीं कर सकता. लॉ में ये प्रोविजन है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है. अब मैं रेवेन्यू से यही कह सकता हूं कि भैया आप इनकी बात सुने, इस पिटिशनर की, और इसको सॉल्व करें. तो रिप्रेजेंटेशन का मैटर बना के इनने बोल दिया रेवेन्यू कंसीडर कर सकता है सीबीआईसी एंड जीएसटी काउंसिल, बट जब तक लॉ में चेंज नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता. अब एक क्लोज करूंगा एक सिचुएशन के साथ. इंटरेस्ट ऑन ग्रॉस टैक्स वर्सेस नेट टैक्स, राइट? इंटरेस्ट ऑन ग्रॉस टैक्स वर्सेस नेट टैक्स हम सब डिबेट कर रहे थे ना. नोटिफिकेशन 63/2020 आया, उसने कहा नेट पे लगेगा बट 1 सितंबर 2020 से लगेगा. सबने, मैंने ट्वीट किया, आप लोग अगर मेरे साथ अटैच्ड हैं तो मैंने ट्वीट किया. मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा सभी पार्टिसिपेंट से. देखिए जीएसटी में मेरे से जितना सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है मैं पूरी कोशिश करता हूं. आप मेरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कम से कम अपडेटेड सारी चीजें एज ऑन रियलिस्टिक बेसिस मिलेंगी. तो जब ये नोटिफिकेशन 63/2020 आया तो मैंने इमीडिएट ट्वीट किया, अरे 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आपने कहा कि ये रिट्रोस्पेक्टिवली जुलाई 1, 17 से होगा, और अब आप कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिव है. ये कहां तक सही है? नेक्स्ट डे प्रेस रिलीज आता है, प्रेस रिलीज, और उसमें कहते हैं नहीं नहीं पास पीरियड के लिए हम आपसे नहीं मांगेंगे, हम तो आपसे नेट पे ही मांगेंगे. कोई मुझे लॉ की लैंग्वेज में समझा दे इस प्रेस रिलीज का क्या रिलेवेंस है अगर आपने लॉ में अमेंड नहीं किया. फाड़ के फेंक दीजिए, ये फाड़ के फेंक दीजिए. लॉ में करते ना, आपकी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज है, आपने उसमें लिखा लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज है. अरे सर, लॉ की तरह रीड होता है. कोर्ट को, गुजरात हाई कोर्ट को मेरी दिक्कत तो समझ में आ गई थी, पर उसने कहा बिमल मैं लॉ के बियॉन्ड कुछ नहीं पढ़ सकता. और विश्वास मानिए जीएसटी गुड एंड सिंपल इसीलिए नहीं बन पा रहा कि हम सोचते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है. बट नेवरदलेस 6 बज चुके हैं. एक मेरी केस स्टडी और थी, रह गई, फिर कभी करेंगे आपके साथ. मौका मुझे मिलता रहेगा आप लोगों से मिलने का. थैंकिंग ईच वन ऑफ यू. आप लोगों ने समय निकाला, रजिस्ट्रेशन भी कराया था और आप लोग आए और आपने पार्टिसिपेट किया. 300 रजिस्ट्रेशन थे, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई थी, पर 240 लोगों ने अटेंड किया और 220 लोग अभी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं. That shows your love and affection with Bimal Jain. So, with the gratitude at the outset from core of my heart, I'm thanking each one of you for giving your 2 important asks to me for listening on place of supply. Hope आप सबको मजा आया होगा. Thank you very much. Thank you, Bimal ji, for such a nice and lucid presentation. हर चीज बड़ी क्लैरिटी में बता दी आपने कि what is the base of supply, what are the various sources of the goods and services, this is the base consumption, destination based tax on consumption, that's the paramount thing. You have to mind the consumption कहाँ की हो रही है, where the tax has to go, the tax has to rise to the community. And then coming up. सर 1 मिनट लेता हूँ सर. सर मैं, ये लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं, नंबर दे दूं इन लोगों को. हाँ सर प्लीज. 98-106-04-563. आप सब लोग अपना हैंड रिटन नोट मुझे भेज रहे हैं, ध्यान रखिएगा. 98-106-04-563. यस प्लीज.
सर व्हाट्सएप कर देंगे एंड्रॉइड नोट्स अपने अपने जो लिखे आज की डेट का सर आप यार वो व्हाट्सएप नहीं, मेरी ना बारात आप पूछिए मत मेरा क्या हाल हो जाता है, मैं फिर रिप्लाई कर नहीं पाता और हो नहीं पाती चीजें, नहीं हो सकती सर, मेरी भी कमिटमेंट है, प्रोफेशनली मैं भी ऑक्युपाइड रहता हूँ। ठीक है, आपके नोट जरूर भेजिएगा। definitely sir, and then the various things, because when the invoices were greater than 50,000, so supplier has to raise the invoice to the place. That's a very key point. आपका साड़ी वाला केस बड़ा स्पष्ट है कि आदमी ने लिखना पड़ेगा बाहर जा रहा है नहीं जा रहा सर. Thus the work contractor does not need registration in all the states. The paramount response to all the contractors everywhere. That is a and the advanced ruling in TD&D electrical. So thank you for such nice deliberation. Explain to everybody and to all the participants who really participated with the right spirit. So thank you very much. Looking forward to video again, sir. Thank you very much. Thank you. Take care. Thank you, sir. Thank you, Jain Saab. Thank you very much, sir. Thank you, Thank Ji. you, boss. Thank you. Thank you, Bimal ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Rakesh ji. बहुत बहुत बढ़िया. Thank you very much, sir, boss. Thank you. Thank you, sir. राजेश जी राधे राधे. Let's close.